So first of all, I would like to introduce myself. Myself is Junaid, and I am a master graduate from Lahore University and Management Sciences. And the area of my research is in theoretical high energy physics, in particular in string theory. Tonight, I have been given an opportunity to give a talk on the introduction of string theory and its phenomenology in the perspective of holography. I have been asked about to keep it as simple as possible because there are many participants who are either in the sophomore year or the junior year and haven't taken the advanced courses or theoretical courses yet. So I have kept it at the physics rather than the mathematical formalism dealing with it. So let's start our presentation. This is our outline which I will follow, and I have categorized into four parts. The first one is the introduction for quantum gravity. I'll explain what quantum gravity is and why do we need it. So after explaining the motivation and its introduction, I will move forward to string theory. And what is string theory? That will deal with the introduction and some is dynamics. We will study and see dynamics in space time and different version of it. There are five type of this version. So we will see what are those. And after that, there is a key feature in string theory. Without it, we cannot study its application, and that are deep brains. So without it, we cannot study the application of string theory. So I have included in my presentation. We will discuss what are deep brains and how the fields are associated on it. And after discussing the deep brains, we will discuss the phenomenology of the string theory. And in the phenomenology, we will discuss what are the dualities and what are the holography in it. After that, we will discuss what is the emergence of holography, and that's the kind of a talk we will discuss. After the talk, we will have some a Q&A session. I guess there are many of us who have typed who have some issues. They don't have hearing the voice or something like that. Everybody hear me? Bilal, are you hearing me? Yes. Because some participants claim that they don't hear any voice. सो जिनको So आवाज़ नहीं that आ रही वो इसको दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। सो आप दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करके देख लें या माइक्स दोबारा कनेक्ट कर लें अपने। so let's start. First of all, I would like to start with the motivation for quantum gravity. And what is quantum gravity? Before coming to that, I want to start with the fundamental forces which we are always, which we, everyone is comfortable with. Actually, there are four kind of fundamental forces. The first one is the strong force, and the weak force, electromagnetic force, and the fourth one is gravitational force. And the strong force is responsible for the nuclei to hold the nuclei together, and the weak force is responsible for the beta decay and the fusion reaction, and the third one is the electromagnetic force, सॉरी which टू deals इंटरप्ट with the जुनेद भाई। yeah. जुनेद भाई आप प्लीज़ उर्दू में इसको शिफ्ट कर लेंगे। Okay, okay, no problem. ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो जिस तरह हमें पता है कि हमारी जो नेचर है उसमें चार तरह की जो बुनियादी फोर्सेस होती हैं वो हैं, जिनमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है जो कि एटम के न्यूक्लियाई होते हैं उनमें को जो होल्ड करके रखती है, उसको रिस्पॉन्सिबल कर रही होती है, उसको फीचर कर रही होती है। और एक होती है हमारे पास वीक फोर्स जो कि किसी भी एटम में बीटा डिके या फिर जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं उसमें करस्पॉन्डिंग होती है। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कि चार्ज की जो फील्ड होती है किसी पॉइंट के ऊपर किस तरह एक्ट कर रही होती है, वो सारी चीज़ें हैं। एंड द फोर्थ वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये मतलब क्या काम कर रही होती है, जो ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रही होती है, जो आपकी हर जो हैवी बॉडी होती है वो टूवर्ड्स अर्थ मूव कर रही होती है, तो वो जो फोर्स है वो उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अब इसमें इशू ये है कि हमारे पास जो पहले तीन फोर्सेज हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दे आर क्वांटम फोर्सेज। वो सारी क्वांटम फोर्सेज हैं, वो सारी की सारी तब उनके इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जब हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं या हम बहुत सब एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, तो हम उन फोर्सेज से डील कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली में एक हमारे पास एक मॉडल है जो कि पार्टिकल फिजिक्स की फील्ड में मतलब उसी तरह का रोल प्ले करता है।
जिस तरह मैकेनिक्स के अंदर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन प्ले करता है। आई गेस हर किसी को न्यूटन का सेकंड लॉ पता होगा, एफ इज इक्वल टू एम में, जो कि एक फाउंडेशनल लॉ है पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। Similarly, in particle physics, there are a model which is called the standard model of physics, जिसमें हमने क्या करते हैं, हमें जो ये पहली तीन फोर्सेस हैं इनको क्वांटाइज किया हुआ है। तो आई टॉक अबाउट व्हाट द क्वांटाइजेशन मीन। तो उसका इसका बेसिक आइडिया ये है कि जिस तरह हम कहते हैं जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं वो एक होल्ड कर रही होती हैं, उनके दरमियान जो स्ट्रॉन्ग फोर्स को जनरेट कर रहा होता है पार्टिकल होता है जो हम ग्लूऑन कहते हैं। ग्लूऑन द फोर्स कैरियर जो कि फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स को रिस्पॉन्स कर रहा होता है। सिमिलरली जो वीक फोर्सेस होती हैं उनके लिए डब्ल्यू बोसॉन्स होते हैं एंड डी बोसॉन्स होते हैं। और फिर हमारे पास थर्ड टाइप की होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो कि फोटोन का फोर्स कैरियर होता है। मतलब अगर फोटोन होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकेगी। एंड द फोर्थ वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। और राइट नाउ हमें उसका फोर्स कैरियर का नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, लेकिन हम उसको एक नाम दे देते हैं ग्रेविटॉन। आई गेस काफ़ी लोग चैट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो उससे डिस्टर्बेंस भी होगी। जिनको कनेक्टिविटी इशूज हैं काइंडली वो इतना दोबारा रिकनेक्ट कर लें तो वो ठीक हो जाएंगे। कोई बाकी को सबको मतलब आवाज़ आ रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स क्या है। एक्चुअली में इसको बताने का एक मकसद है। आई गेस कि जो कि ग्रेड स्टूडेंट्स हैं या फिर जो पीएचडी कैंडिडेट्स हैं वो तो काफ़ी फेमिलियर होंगे स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स से, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन जो कि अभी कॉलेज लेवल पे हैं या फिर जो अभी सोफोमोर ईयर में हैं या फिर जूनियर ईयर में जिन्होंने अभी एडवांस कोर्सेज नहीं पढ़े, उनको एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने इंक्लूड किया है जो कि ज़रूरी है हमें समझने के लिए। तो इसके समझने के बजाय हम जो मैंने ऊपर बताया है कि मोटिवेशन फॉर क्वांटम ग्रेविटी उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। तो इसका मेन आइडिया हमारे पास ये है कि ये कहता है कि हमारे पास पूरी कायनात में जितने भी पार्टिकल्स हमारे पास हैं उनको हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। पहले को हम कहते हैं फर्मियन और दूसरे को कहते हैं बोसॉन। अब जो फर्मियन है ना, वो जितना भी आप अपने अराउंड मैटर देखते हो, जितना भी मैटर आप देख रहे हो वो सारे का सारा फर्मियन से मिलकर बना हुआ है। आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका सोफा, फ्रिज, इवन के हर मैसिव जो बॉडी है वो सारी के सारी जो मैसिव बॉडीज में सारी के सारी फर्मियन से मिलकर बनी। जितना भी मैटर है कायनात के अंदर वो फर्मियन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह हमारे पास दूसरे तरह के पार्टिकल होते हैं जिनको हम बोसॉन्स कहते हैं। अब वो बोसॉन्स का रोल प्ले करते हैं। वो जो बोसॉन्स हैं वो जो जितना भी हमने मैटर बनाया हुआ है वो आपस में किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है उसको रिस्पॉन्सिबल कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास ये 12 तरह के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो हाँ, अब हमारे पास ये 12 तरह के पार्टिकल्स हैं। ये सारे एलिमेंट्री पार्टिकल हैं जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ। तो इनमें से ये टोटल 12 पार्टिकल्स हैं जिनमें 6 हमारे पास है जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं, एंड बाकी जो 6 हैं उनको हम लेप्टॉन्स कहते हैं। अब जो ये क्वार्क्स होते हैं, जो ये वाले 6 हैं, फर्स्ट 2 रोज, इनमें काफ़ी तरह के मतलब हैं क्वार्क्स जिनको हम कहते हैं अप क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्पेस क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क। अब जो क्वार्क्स के दरमियान जो फोर्स कैरियर्स होते हैं वो ग्लूऑन्स होते हैं। मतलब अब आपको ये बताऊं कि आपको जो प्रोटॉन्स होते हैं, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो एक्चुअली में इन क्वार्क्स से मिलकर बने होते हैं। पहले एक फंडामेंटल आइडिया ये था कि आपके पास फंडामेंटल एलिमेंट है वो एटम है। एटम से एटम को हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। फिर एक ऐसा वक्त आया कि हमने देखा कि एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं जिनको हम प्रोटॉन्स कहते हैं, न्यूट्रॉन्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फिर एक ऐसा वक्त आया कि हमने कहा कि नहीं, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी हैं ये भी एक्चुअली में फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं है। ये मजीद डिवाइड हो सकते हैं अपने सब एटॉमिक बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर। तो उनको हमने ये कहा कि वो क्वार्क्स होते हैं और वो क्वार्क से 6 तरह के होते हैं। अब जैसा मैंने पहले बात की, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है उनको ग्लूऑन्स रिस्पॉन्सिबल कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट होती है, पैदा होती है इन ग्लूऑन्स पार्टिकल्स की वजह से। तो ये वो ग्लूऑन्स हैं जो कि ये बोसॉन्स हैं जो कि इन फर्मियंस को इंटरेक्ट करवाने के लिए हेल्प आउट कर रहा होता है। सिमिलरली हमारे पास 6 तरह के डिफरेंट एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिनको हम लेप्टॉन्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास 6 तरह के होते हैं। उनमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है।
इलेक्ट्रॉन को आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। इसी तरह एक और इलेक्ट्रॉन की तरह एलिमेंट्री पार्टिकल जिसको हम म्यून कहते हैं, फिर हम टाउ कहते हैं, फिर उनके न्यूट्रिनोज भी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो हो गए, म्यून न्यूट्रिनो हो गए, टाउ न्यूट्रिनोज हो गए। अब जिस तरह ये ग्लूऑन्स हैं, ये जो क्वार्क्स हैं, ये जो ग्लूऑन्स कैरियर को फॉलो करते हैं, इसी तरह जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोटॉन्स के लिए। मतलब जितने भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंटरेक्शन चाहिए ना, वो आपको इन पार्टिकल से मिलेगी। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब ईएनएम फील्ड के अंदर इंटरेक्ट कर रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से भी इंटरेक्ट कर रहा होता है और मैग्नेटिक फील्ड से भी इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो लेकिन उसके पीछे जो पार्टिकल है जो कि वो इंटरेक्शन करवा रहा होता है, वो उसको हम फोटोन कहते हैं। सिमिलरली जो हम बीटा डिके देखते हैं, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन देखते हैं, जो फ्यूजन रिएक्शन देखते हैं, उनके लिए ये वाले रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब फिजिक्स के अंदर 1950s के अंदर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि जब ये स्टैंडर्ड मॉडल बन रहा था कि जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं, जो कि ये वाले पार्टिकल जिनको मैं 12 पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल्स कह रहा हूँ, ये सारे इनमें से जो 9 हैं, 9 ऑफ देम आर मैसिव पार्टिकल्स विदाउट न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का भी कुछ मैथ होता है मगर क्वाइट नेग्लिजिबल। तो जो बाकी जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल है वो मैसिव पार्टिकल्स होते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आया था कि जो पार्टिकल होते हैं वो मैथ किस तरह गेन करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था हमारे पास। तो जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसने एक प्रिडिक्शन की थी। उसने कहा जिस तरह ये जो बाकी पार्टिकल्स हैं, हर पार्टिकल्स के कोरस्पॉन्डिंग उसके बोसॉन्स हैं, फोर्स कैरियर्स हैं। इन पार्टिकल्स के लिए भी ये फोर्स कैरियर्स हैं और इन पार्टिकल्स के लिए फोर्स कैरियर्स हैं। इसी तरह एक ऐसा एक ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जो इन सबको मैस प्रोवाइड करे। तो वो जो हमारे पास है उसको उन्होंने कहा था वो हिग्स है, वो हिग्स बोसॉन है, एक ऐसा पार्टिकल जो इन सबको मैस प्रोवाइड करता है। तो ये प्रिडिक्शन कर दी गई। फिर 1912 एक मतलब जो 1912 ईयर था उसके अंदर सन के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया गया और वहां पर उन्होंने ये जो हिग्स पार्टिकल है इनको डिस्कवर कर लिया। तो लिहाजा अभी तक हमें ये पता है कि जो जितने भी कायनात में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको मैथ किस तरह मिला और किसने दिया, और वो है हमारे पास हिग्स बोसॉन। तो ये जितनी भी मैंने स्टोरी अभी तक आपको तमहीद बांधी है, ये सारी की सारी से तीन फोर्सेस को इनकॉर्पोरेट कर रही हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स जिनमें ये क्वार्क्स आते हैं, वीक फोर्स जिनमें ये तीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन म्यून टाउ, एंड फोर्स सॉरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसमें ये तीन पार्टिकल्स आते हैं, एंड फोर्थ वन इज वीक फोर्स जिसके अंदर ये न्यूट्रिनोस पार्टिकल्स हैं वो आते हैं। अब एक क्वेश्चन असल में ये है कि जो हमारे पास ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसको इनकॉर्पोरेट हम नहीं कर सके बिकॉज जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्लासिकल फोर्स है। वो तभी आपके पास ज़्यादा वो कहते हैं मतलब अपीयर होती है जब आपके पास मैसिव बॉडीज होती हैं, मतलब जिनके मैसिव बहुत ज़्यादा होते हैं, और एलिमेंट्री पार्टिकल मैसिव इंतहाई नेग्लिजिबल होते हैं जिनको हम इग्नोर भी कर देते हैं। लेकिन हमने ऐसा एक ऐसी एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं कि अगर जिस तरह बाकी तीन फोर्सेस के लिए ये फोर्स कैरियर्स मौजूद हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी एक फोर्स कैरियर मौजूद होना चाहिए जिसको हम ग्रेविटॉन कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये ग्रेविटॉन है, ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड मॉडल में आता भी नहीं, इसी वजह से ये आउटसाइड द स्टैंडर्ड मॉडल है। स्टैंडर्ड मॉडल इस चीज को इनकॉर्पोरेट नहीं करता। तो अब असल में जो क्वांटम थियरी है जिसको हम क्वांटम ग्रेविटी कह रहे हैं, उसका मकसद ही यही है कि हम किसी तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि क्लासिकल फोर्स है उसको क्वांटाइज कर दें, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने बाकी तीन फोर्सेस को क्वांटाइज कर दिया। तो इस थियरी को हम कहते हैं क्वांटम ग्रेविटी, मतलब हमने ग्रेविटी को क्वांटाइज करना है उसी तरह जिस तरह हमने बाकी तीन फोर्सेस को किया। अब हम ये काम करना क्यों चाह रहे हैं, असल क्वेश्चन तो ये उठता है कि हमने इन चारों फोर्सेस को क्वांटाइज क्यों करना है। एक्चुअली में जब आप सबको पता होगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में, एक थ्योरी है जो कि ये बताती है कि कायनात किस तरह मार से वजूद में आई। उसकी एक मतलब आइडिया ये है कि मतलब एक ऐसा धमाका हुआ जिसके बाद सारी कायनात में वजूद में आ गई। अब जब धमाका होने से पहले जब धमाका हुआ तब कायनात बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी, मतलब इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट फ्रॉम नथिंग वेयर, मतलब किसी भी ना मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी, मगर अचानक एक धमाका हुआ जैसे हर चीज़ वजूद में आ गई। तो जब धमाका हुआ उस वक्त जो भी चीज़ होगी उस वक्त वो काफ़ी छोटे लेवल पे होगी, मतलब वो क्वांटम होगी उस वक्त। तो उस क्वांटम के ऊपर क्वांटम इफेक्ट अप्लाई हो रहे होंगे। तो हमने जो तीन चीज़ें हैं उनको तो हमने क्वांटाइज कर लिया, लेकिन जो चौथी है ग्रेविटी उसको हम क्वांटाइज नहीं कर सके। तो अगर हम किसी तरीके से ग्रेविटी को क्वांटाइज कर लें
तो हम ये देख पाएंगे कि जब बिग बैंग हुआ तब उस वक्त क्या सिचुएशन थी। तो अब हमें ये अच्छा, अगर हमें पता चल भी जाए तो हम उससे क्या कर लेंगे। असल क्वेश्चन तो ये भी है कि ठीक है जी, जो क्वांटम अगर हमने वो क्वांटाइज कर लिया तो उससे हम क्या चीज़ निकाल लेंगे। इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स हमें आंसर करती है, बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, जो मतलब जिसको मैं कहता हूँ वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग रिजल्ट इन क्वांटम मैकेनिक्स, एंड दैट इज कि अगर आपको किसी भी स्टेट की इनिशियल स्टेट पता है, किसी भी सिस्टम की इनिशियल स्टेट को पता है, तो आप उसके ऊपर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करके उसकी लेटेस्ट स्टेट बता सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आपको पार्टिकल का पता है कि पार्टिकल इस वक्त किस पोजीशन के ऊपर है, तो आप उसके ऊपर ऐसा जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है वो अप्लाई करके बता सकते हो कि वो इस आफ्टर टाइम टी में वो अपने इस स्टेट के अंदर होगा। अब इसका फायदा क्या है, एक बहुत अच्छा रिजल्ट है वो, जो कि ये बताता है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि बिग बैंग के ऊपर क्या हुआ था, तो हम ये बता पाएंगे कि हमारी कायनात का फ्यूचर क्या है। तो आई गेस जो हर ह्यूमन बीइंग है ऑन दिस प्लेनेट वांट्स टू रियली नो अबाउट के व्हाट आर इट्स फ्यूचर, उसका फ्यूचर क्या होगा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस यूनिवर्स, हाउ इट विल एंड, ये सारे क्वेश्चन वगैरह हैं। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब हम इन तीन फोर्सेस की तरह ग्रेविटी को भी क्वांटाइज कर लेंगे। तो दैट्स द मोटिवेशन फॉर क्वांटम ग्रेविटी। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। या अब जिस तरह मैंने कहा, जो हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल था जो कि हमें बता रहा था कि किस तरह फोर्सेस हमने पहले तीन फोर्सेस को क्वांटाइज कर दिया, वो बता रहा है स्टैंडर्ड मॉडल में। और एक आखिरी चीज़ है कि ग्रेविटी, हम चाहते हैं कि हम इन दोनों को भी किसी तरीके से मिला दें ताकि हमारे पास एक थ्योरी आ जाए जिसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। मतलब थ्योरी ऑफ एवरीथिंग इज मतलब इनफॉर्मल वर्ड, एक्चुअली मुझको क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी कहना चाहिए कि हमने क्वांटम को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब मसला ये है, दोनों थ्योरीज के अंदर क्लैश है। वो क्लैश क्या है? पहला क्लैश ये है कि मतलब जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो डिस्क्रीट फील्ड को यूज कर रहा होता है। तो आप क्वांटम मैकेनिक्स में होते हो, क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटास होते हैं और क्वांटा डिस्क्रीट होते हैं। हमें मतलब डिस्क्रीट से मुराद क्या होता है कि इंटीजर मल्टीपल 1 2 3 4 5 व्हिच यू कैन काउंट, आप काउंट कर सकोगे उसको। तो हमें इसलिए हमें डिस्क्रीट नंबर ऑफ क्वांटास चाहिए उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये हमें जो है स्टैंडर्ड मॉडल को बताता है। इसकी वजह से हमारे पास एक डिस्क्रीट सेट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी हैं और उसके कोरस्पोंडिंग डिस्क्रीट सेट ऑफ एलिमेंट्री बोसॉन्स भी हैं। अच्छा, अब एक स्टैंडर्ड मॉडल के एक पैराडाइम है जिसको हम क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं। अब ये क्वांटम फील्ड थ्योरी इज सुपर सेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एक्चुअली क्वांटम मैकेनिक्स जो है उसको वो सबसेट है क्वांटम फील्ड थ्योरी का। क्वांटम फील्ड थ्योरी का एक आइडिया ये है कि हमारे पास एक्चुअली में हम पढ़ते आए हैं कि पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन क्वांटम फील्ड कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्वांटम फील्ड कहती है कि आपके पास एक पूरी फील्ड है, आप उस फील्ड के अंदर एनर्जी दोगे तो वो पार्टिकल्स मिलना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इस वाली डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास एक पूरी फील्ड है, आपने उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की, जैसा अगर वाटर पूरा वाटर टब है, आपने उसमें कुछ चीज़ ड्रॉप की तो उसमें से एक जो बबल्स होते हैं वो पॉपअप होना शुरू हो जाते हैं। तो आप ऐसे ही समझे कि आपके पास एक फील्ड है जिसमें आप कुछ चीज़ फेंकते हो या डिस्टर्ब करते हो तो उसमें कुछ चीज़ें पॉप आउट होना शुरू हो जाती हैं। अब वो कौन सी चीज़ें जिसको आप फेंकोगे और जिससे चीज़ें पॉप आउट होंगी, वो एनर्जी है। अगर हम एनर्जी देंगे उस फील्ड के अंदर तो आपको डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स मिलेंगे। ये एक डिफरेंट पार्टिकल है, ये एक डिफरेंट पार्टिकल है, ये एक डिफरेंट पार्टिकल है। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी का बेसिक आइडिया ये है कि हमने पार्टिकल्स को एज अ फील्ड ट्रीट करना है। अब देयर अ क्वेश्चन इन इट के व्हाई डू वी नीड क्वांटम फील्ड थ्योरी, जबकि हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है, हम क्वांटम मैकेनिक्स को अच्छे तरीके से पूरा डेवलप कर चुके हैं और जो क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट भी हैं वो भी काफ़ी हद तक एक्सपेरिमेंटल से मैच भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है दैट इज नॉट लोरेंस इनवेरिएंट, मतलब वो उसमें स्पेशल रिलेटिविटी इंक्लूड नहीं है। मतलब जो क्वांटम थ्योरी है हमारे पास वो नॉन रिलेटिविस्टिक है, मतलब उन स्पीड के ऊपर जब पार्टिकल बहुत स्लोली मूव कर रहे होते हैं। मगर आपको पता है कि जो मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं वो काफ़ी हाई स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉन विच ट्रेवल्स नियरली एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो उसके लिए हमें एक थ्योरी चाहिए थी जिसको मतलब वैसे तो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स भी है मगर उसके अपने अंदर कुछ ड्रॉबैक्स हैं, मतलब इन्फिनिटी आ जाती हैं। फिर हमको एक थ्योरी हमने ह्यूमन काइंड ने डेवलप की जिसको क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं। आई थिंक दैट्स
द इनफ इंट्रोडक्शन फॉर इट। तो ये मैंने आपको बता दी कि उसका मतलब क्वांटम फील्ड थ्योरी का पीछे आइडिया क्या है। अब हम चलते हैं दूसरी, ये हमने पूरी डिस्क्राइब करी जो स्टैंडर्ड मॉडल है जो कि क्वांटम फील्ड थ्योरी की एक सबसेट है, और उसको हमें देखें कि उसको डिस्क्रीट फील्ड चाहिए होती हैं। जबकि दूसरी तरफ जो ग्रेविटी है, दैट्स अ क्लासिकल वर्जन, जो कि ये बताती है कि, और जिसको डिस्क्राइब किया था आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन। आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी थी जिसको आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी कहते हैं, और जिसने डिपिक्ट किया था कि जो ग्रेविटी है वो कंटिन्यूस फील्ड्स को ओबे कर रही होती हैं। बिकॉज कंटिन्यूस फील्ड ये है कि मतलब आप काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 समथिंग, ये कंटिन्यूस एक प्रोजेक्शन है। तो उसके लिए हमें एक कंटिन्यूस फील्ड चाहिए होती है। तो अब मसला ये है कि जब भी हम क्वांटम फील्ड थ्योरी और ग्रेविटी मतलब जी आर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को आप कंबाइन करते हैं, हम चाहते हैं कि इनको कंबाइन करके एक सिंगल थ्योरी बना ली जाए, तो उसमें हम फेल हो जाते हैं। मतलब जब क्योंकि अब आपको दो थ्योरीज हैं इस वक्त ह्यूमन काइंड के पास, मैं आपको वो चीज जो इस वक्त हमारे पास है। एक थ्योरी वो है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई होती है, बहुत छोटे लेवल पे अप्लाई होती है। और जो दूसरी थ्योरी है वो मैसिव लेवल के ऊपर अप्लाई होती है, मतलब जहाँ पे प्लैनेट इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे मतलब मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर अप्लाई हो रही होती है। और जब हम और दोनों थ्योरी सक्सेसफुल है, एक्सपेरिमेंटली सक्सेसफुल है, और आई थिंक 10⁻16 या 12 तक जाके वो एग्री करती हैं एक्सपेरिमेंट से। और ये दोनों थ्योरीज इस वक्त ह्यूमन काइंड की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो अब क्वेश्चन तो यही है कि दोनों थ्योरी को जब हम कंबाइन करते हैं तो फ्लैश होना शुरू हो जाता है। तो अब हम अब यही जो अब हमारे पास जो क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी है उसको हम देखें, कुछ कैंडिडेट्स हैं, मतलब काफ़ी थ्योरी मतलब इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, जो कि क्लेम करती हैं कि हम इस क्वांटम ग्रेविटी को जो क्लासिकल है और जो क्वांटम फील्ड थ्योरी जो सब एटॉमिक लेवल पे है और क्वांटम है, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं और एक सिंगल थ्योरी जिसको हम थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग कहते हैं वो हम बना सकते सर हैं। सर सर अगर माइंड ना करें तो थोड़ा सा ऐसा ऐसा बोले, जल्दी जल्दी में मिस ओके। हो रही है, कनेक्ट इतना अच्छा नहीं होता। अब मैं बात कर रहा था कि मार्केट में डिफरेंट तरह की थ्योरीज हैं जो कि ये क्लेम करती हैं कि हम क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को कंप्लीट कर लेंगे। जिनमें से पहली थ्योरी है जो कि स्ट्रिंग थ्योरी कहलाती है, एक दूसरा कैंडिडेट जो कि लूप क्वांटम ग्रेविटी होती है, एंड थर्ड वन इज कॉजल सेट थ्योरी। आई थिंक बिलाल ने कॉजल सेट थ्योरी पर सेकंड लेक्चर डिलीवर किया होगा, उसका कुछ ये आइडिया बता भी दिया होगा, लेकिन मैं अब तीनों को इसी स्लाइड में जो कि आपको पिक्चर नजर आ रही है इसका बताता हूँ कि तीनों चीजें हैं क्या। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि आपके पास कोई भी जो स्पेस टाइम है, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअली में स्ट्रिंग्स हैं। मतलब कोई मतलब जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि जहाँ पर हमें ये 12 तरह के पार्टिकल्स हैं, स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि नहीं, तो ये वाले भी 12 तरह के पार्टिकल्स हैं, ये भी डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बने हैं जिनको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं, जो कि ये स्ट्रिंग थ्योरी का फाउंडेशन आइडिया है। और लूप क्वांटम ग्रेविटी कहती है कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना, हमें स्ट्रिंग से डील ही नहीं करना, बिकॉज उसके अपने कुछ वजूहात हैं, वो मैं आगे बताऊंगा कि स्ट्रिंग थ्योरी के प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। क्वांटम लूप क्वांटम ग्रेविटी ये कहती है कि बजाय कि आप पार्टिकल को वहां पर ही रहने दें कि हमारे पास 12 तरह के पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन जो हमारी स्पेस टाइम है जो कि ये ग्रेविटी बता रही है हमें, जो ग्रेविटी हमें बता रही थी कि हमारे पास कंटिन्यूस फील्ड है, वो कहता है कि आप इन कंटिन्यूस फील्ड को डिस्क्रीट फील्ड कर दें। मतलब कोई मैथमेटिक फॉर्मुलिज्म करें जिससे ये जो क्लासिकल ग्रेविटी की जो फील्ड है ना, ये क्वांटाइज हो जाए, ये डिस्क्रीट हो जाए। अगर तो आप ये काम कर ले तो जो ये वाली अप्रोच है इसको हम लूप क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं। और जो थर्ड वन अप्रोच है उसको हम कॉजल सेट थ्योरी कहते हैं, जिसका बेसिक आइडिया ये है कि आपके पास एक इनिशियल स्टेट थी और उस सेट जिनको आप डिस्क्राइब कर सकते हो किसी ज्योमेट्री से, उस सेट से, और उन सेट से डिफरेंट लिंक बनते रहे और आपकी जो कायनात है वो इवॉल्व करती चली गई। तो आई गेस इसका जो मजीद जो मतलब मेरा जो काम है वो स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर ही है, तो मैं उसी के बारे में ज़्यादा बात करूँगा आगे। बाकी के कॉलेज थ्योरी के बारे में बिलाल ने लास्ट लेक्चर में बात कर ली थी। अगर कोई आप में से इंटरेस्टेड है तो वो वाला लेक्चर आप बिलाल से रिक्वेस्ट कर लो, उसने रिकॉर्ड किया होगा, ही विल सेंड यू अ लिंक। अच्छा, अब इन तीनों थ्योरीज के अंदर जो मोस्ट प्रॉमिसिंग थ्योरी है इस वक्त जो इस क्वेस्ट को आंसर करती है वो स्ट्रिंग थ्योरी है। उसकी वजह ये है कि स्ट्रिंग थ्योरी है जो उसका मैथमेटिक्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होने से मतलब ये है कि जिस तरह आपको पता है कि 2 + 2 = 4,
ये एक मैथमेटिकल रिजल्ट है और आप इसको कभी भी डिनाई नहीं कर सकोगे। मतलब आज से हजारों साल पहले भी 2 + 2 = 4 था, आज भी 2 + 2 = 4 है और आने वाली सदियों बाद भी 2 + 2 = 4 है। तो दैट्स द पावर ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपने कोई मैथमेटिकल रिजल्ट, मैथमेटिकल इक्वेशन रिलेशन दे दिया है तो वो कभी डिनाई नहीं हो सकता। तो जो स्ट्रिंग थ्योरी की सक्सेस है वो यही है कि इट्स हाईली मैथमेटिकल थ्योरी, जिसके जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत प्रॉमिसिंग भी है। तो इसी वजह से इन बाकी 3 थ्योरीज के निस्बत आपने स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो यहाँ तक हमारा जो इस टॉक का पहला पोर्शन है वो क्लियर होता है कि स्ट्रिंग थ्योरी की जो क्वांटम ग्रेविटी की मोटिवेशन क्या है। अच्छा, अब मैं बात करने जाऊँगा स्ट्रिंग थ्योरी की, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपने अक्सर अगर आप यूट्यूब के ऊपर लिखते हो व्हाट इज स्ट्रिंग थ्योरी, तो आपको काफ़ी तरह की एक मोटी एक वीडियो क्लिप मिल जाएँगे जिन्होंने काफ़ी विजुअलाइज़ करके दिखाया होगा आपको कि स्ट्रिंग थ्योरी ऐसी है, स्ट्रिंग थ्योरी ऐसी है। और मैंने खुद फ़ील किया है कि काफ़ी लोग उस उन वीडियोज़ को देख के काफ़ी मोटिवेट भी हो जाते हैं और कहते हैं हमें स्ट्रिंग थ्योरी करनी है। और एक्चुअली में ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैं इसको ठीक है, मतलब एक छोटे लेवल पे बिल्कुल हद तक ठीक है, आपको एक नाइवली आइडिया हो जाता है, लेकिन किसी भी फील्ड को अगर आपने परस्यू करना है और उसको आप सिर्फ परस्यू इसी वजह से कर रहे हो कि उसने आपने उसकी 3-4 क्लिप्स देखे, आपको पूरा मोटिवेटिंग लग गया, आप कहते हो हाँ भी मैंने यही करना है। थिंकिंग का ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है। जो आप क्लिप्स में देखते हो यूट्यूब को, वहाँ पर सिर्फ आपको एक विजुअलाइजेशन दिखाई जा रही होती हैं, मगर उनके हर एक स्टेटमेंट के ऊपर एक लॉन्ग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। तो हम भी कुछ वही देखेंगे यहाँ पे कि वो चीज़ क्या होती है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मगर आपको मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ कि मतलब जिन लोगों को भी इंटरेस्ट है स्ट्रिंग थ्योरी करने का, वो अपने ज़हन में यही भी रखें कि उनको हाईली मैथमेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए होगा। So let's move to the second portion of our talk, that is the introduction to string theory. अच्छा जी, अब स्ट्रिंग थ्योरी का बेसिक आइडिया मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम कहते हैं जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो भी एक्चुअली में एक बने हुए हैं, एक वन बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर, जिनको हम स्ट्रिंग्स कह रहे हैं। और स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, जिस तरह आपको पता है कि हमने पार्टिकल्स को हम हमेशा डील करते हैं जीरो डायमेंशनल पार्टिकल्स, मतलब तो जीरो पॉइंट पार्टिकल हम कंसीडर करते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अब वो पॉइंट पार्टिकल्स नहीं है, अब हम स्ट्रिंग्स ले रहे हैं, और जो स्ट्रिंग्स होता है वो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉल पॉइंट, ये जो बॉल पॉइंट है इज अ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। आप इग्नोर करते हैं कि कुछ बिट वगैरह है, तो ये वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसको हम स्ट्रिंग कह रहे हैं, और इसी स्ट्रिंग से मदद से बाकी जितने भी पार्टिकल है वो मिलकर बने हुए हैं। अब आप पूछेंगे स्ट्रिंग्स होते ये किससे मिलकर बने होते हैं, तो एक्चुअली में ये जिनको हम स्ट्रिंग्स कह रहे हैं ये एक एनर्जी होती है। आपने वेव और वेव एंड ऑसिलेशन अगर किसी ने कोर्स पढ़ा होगा उसको पता होगा, जो पार्टिकल होते हैं वो कभी भी अपनी रेस्ट पोजीशन पे नहीं होते, वो हमेशा टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब जो पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं अपने एक मिड पॉइंट के दरमियान। इस तरह हम स्ट्रिंग्स के बारे में भी यही कहते हैं, जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो भी एक्चुअली में एनर्जी होती है जो फ्लक्चुएट कर रही होती है, लगातार फ्लक्चुएट कर रही होती है, कभी रुकती नहीं है। अब कोई भी चीज़ फ्लक्चुएट कर रही होगी तो उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, जैसा वेव्स की होती है, वेव्स भी हमेशा फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, लिहाजा उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर मैंने वो करना है, मैंने अप क्वार्क बनाना है या मैंने क्वार्क ये चार्म बनाना है जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरी स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है अगर वो इस तरह की होगी तो मुझे एक पार्टिकल मिल जाएगा जिसको मैं अप क्वार्क कह रहा हूँ। अगर स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी इस तरह की होगी तो मुझे डाउन क्वार्क मिल जाएगा। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी इस तरह की होगी। मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रिंग से मिलकर बने हैं, और स्ट्रिंग एनर्जीज हैं जो फ्लक्चुएट कर रही हैं, और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट पार्टिकल्स मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन, ईच एंड एवरीथिंग। और जो स्ट्रिंग्स की आपस में कॉम्बिनेशन होते हैं वो डिफरेंट तरह के जो डिफरेंट तरह के पार्टिकल्स बना रहे होते हैं जो कि एलिमेंट्री नहीं होते। अब काफ़ी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि एलिमेंट्री नहीं है। तो ये तो हो गया स्ट्रिंग थ्योरी का फाउंडेशनल प्रिंसिपल के वो उसका की आइडिया क्या है। अब मसला अब यहाँ पे आ रहे हैं उसके कुछ कॉन्स, स्ट्रिंग थ्योरी के कुछ कॉन्स हैं, जो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब पॉपुलर साइंस के अंदर, जो कि ये जो स्ट्रिंग्स होती हैं उनका जो ऑर्डर होता है मेजर करने के लिए वो प्लैंक लेंथ के बराबर होता है। वो प्लैंक लेंथ कितनी होती है, 10⁻⁻⁻35 मीटर। मतलब ये बहुत ये जो इंसानी सोच है उससे भी बहुत ज़्यादा
छोटी लेंथ है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और यही वो लिमिट है, यूनिवर्सल लिमिट है कि हम कोई भी लेंथ इससे छोटी मेजर नहीं कर सकते। इवन कि हम प्लैंक्स लेंथ भी कभी मेजर नहीं कर पाएंगे अभी तक। ह्यूमन एवोल्यूशन कभी भी इतनी इवॉल्व नहीं होगी कि वो प्लैंक्स लेंथ को भी मेजर कर सके। तो यही वजह है जो स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर लिमिट लगाता है कि हम स्ट्रिंग थ्योरी को कभी भी एक्सपेरिमेंटली टेस्टिफाई नहीं कर सकते। और अगर मैं इसको एक डायग्राम पे समझाना चाहूँगा आपको, तो यही है, अगर ये ह्यूमन है, ह्यूमन के कोरस्पॉन्डिंग जो एटम है वो 10 बिलियन टाइम्स छोटा है, और अगर आप उस एटम्स के भी 1 ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियन के अंदर जाओ, फिर आपको स्ट्रिंग्स मिलना शुरू होंगे। मतलब इसको आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, ये इतना छोटी है। अगर आप एटम को भी अभी तक सीधा ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो 10 बिलियन टाइम्स छोटा है कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। तो जो स्ट्रिंग्स एटम से भी ट्रिलियन टाइम छोटे हैं, उनको किस तरह मेजर करोगे? तो मतलब यही वो चीज़ है जिसकी वजह से कई ऐसे फिजिसिस्ट हैं जो कहते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी करना बिल्कुल फजूल है, बिकॉज एक ऐसी थ्योरी है जिसको कभी एक्सपेरिमेंटल टेस्टिफाई कर ही नहीं सकते। लेकिन एक्चुअली में मैंने पहले ही कहा था कि ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं इसे एग्री करता हूँ कि कभी स्ट्रिंग थ्योरी को हम एक्सपेरिमेंटल टेस्टिफाई नहीं कर सकते, मगर हम मैथमेटिक्स तो कर सकते हैं ना। मैथमेटिक्स करेंगे वो तो कभी गलत नहीं होगा। 2 + 2 = 4 जो होगा वो तो हमेशा ट्रू रहेगा। तो हम एक्चुअली ऐसा करेंगे, हम मैथमेटिक्स ड्राइव करते हैं, और एक्चुअली में स्ट्रिंग थ्योरी करते भी यही है, वो मैथमेटिक्स ड्राइव करते हैं, और फिर जो फिजिसिस्ट होते हैं वो उनसे डिफरेंट फिनोमेना को अखज़ कर रहे होते हैं। तो आगे हम अपने कुछ एप्लीकेशन देखेंगे जो कि स्ट्रिंग थ्योरी ने प्रिडिक्ट की हैं, और जिनकी वजह से हम वो चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, जो कि स्ट्रिंग थ्योरी की बहुत बड़ी सक्सेस है। अच्छा जी, अब आगे हम देखते हैं स्ट्रिंग्स 2 तरह के होते हैं। एक होता है ओपन स्ट्रिंग्स और एक होता है क्लोज स्ट्रिंग्स। ओपन स्ट्रिंग्स वो तरह के स्ट्रिंग्स होते हैं कि अगर जिनके 2 डेफिनिट एंड पॉइंट्स होते हैं। अब एक अगर कोई भी स्ट्रिंग ओपन है तो उसके 2 डेफिनिट एंड पॉइंट्स लाजमी होंगे, और जो क्लोज स्ट्रिंग होगा उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। आपने बस एक ओपन स्ट्रिंग को पकड़ा और उसको आपस में ज्वाइन कर दिया, और वो हमारे पास क्या बन जाएगा? क्लोज स्ट्रिंग बन जाएगा। अब जैसे मैंने पहले कहा कि हर जो स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशंस हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग कुछ पार्टिकल्स हैं। अब यहाँ पे की आइडिया ये कि जो हमारे ओपन स्ट्रिंग्स हैं वो सारे हमें पार्टिकल्स दे रहे होते हैं, फोटॉन्स दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दे रहे होते हैं, प्रोटॉन्स दे रहे होते हैं, न्यूट्रॉन्स दे रहे होते हैं। जबकि जैसे क्लोज स्ट्रिंग्स हैं वो हमें ग्रेविटॉन दे रहे होते हैं। अब ग्रेविटॉन क्या है, जिसको मैंने पहले बताया था, यहाँ पे ये ग्रेविटॉन जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होता है, जिसको हमने कहा था कि ये स्ट्रिंग थ्योरी ने प्रेडिक्ट किया कि ग्रेविटॉन हम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है स्ट्रिंग थ्योरी वो एक कैंडिडेट बनती है जिसने ये क्लेम किया कि मैं क्वांटम थ्योरी ड्राइव कर सकती हूँ। तो किस वजह से? बिकॉज जो हमारे पास क्लोज स्ट्रिंग्स हैं वो जो पार्टिकल प्रोड्यूस करेंगे उनको हम ग्रेविटॉन्स कहते हैं, वो ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। जबकि जो हमारे पास ओपन स्ट्रिंग्स होते हैं, जो ये वाले स्ट्रिंग्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बाकी डिफरेंट तरह के पार्टिकल को जनरेट कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हमने देखना है कि जिस तरह आपको पता है कि जब आप पार्टिकल्स की बात कर रहे होते हो, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो वो किस तरह बिहेव कर रहे होते हैं। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होता है। कुछ कहते हैं कि वो ऑर्बिटल मोशन में परफॉर्म कर रहा होता है, कुछ तो इलिप्टिकल मोशन में है। मतलब डिफरेंट टाइप की हमने कन्फिगरेशन डिस्क्राइब की हुई है, ज्योमेट्री डिस्क्राइब की हुई है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अगर स्प्रिंग्स हैं तो स्प्रिंग्स वो स्पेस टाइम में किस तरह इवॉल्व कर रहे होते हैं, वो स्पेस टाइम में किस तरह मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम है जो कि एक पॉइंट पार्टिकल है, वो अगर मूव, अच्छा यहाँ पे मैं ये स्पेस टाइम डायग्राम होती है, पहले ये बता दूँ कि आपके पास एक डायमेंशन के अंदर टाइम है और एक डायमेंशन में आपके पास स्पेस है। मतलब वैसे 2 डायमेंशन में स्पेस है, लेकिन हम उसको आसानी के लिए अभी मतलब 1 डायमेंशन में टाइम लेते हैं और 1 डायमेंशन में स्पेस लेते हैं। मतलब स्पेस के 3 कंपोनेंट है, एक्स, वाई, जी, और एक कंपोनेंट टाइम का। तो हम ऐसा करते हैं कि हम वर्टिकल एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम कोई एक कोऑर्डिनेट स्पेस का एक्स ले लेते हैं। अब मैंने देखना है कि अगर एक पार्टिकल है, मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो क्या बिहेव करेगा। तो हमें पता है कि पार्टिकल इस वक्त इस पोजीशन पे यहाँ पर है, फिर वो यहाँ पर है, फिर अगले टाइम पे इस टाइम पे वो इस पोजीशन के ऊपर है, फिर नेक्स्ट टाइम के ऊपर वो इस पोजीशन पे है, फिर वो इस पोजीशन पे है। तो अगर मैंने इसकी ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करनी हो तो मैं पूरे पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगा, मैं कहूँगा हाँ भी ये उस पूरे पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री है इस टाइम के कोरस्पॉन्ड है। अब इसी तरह मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं, और यहाँ पे ये मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं, और अगर इसको मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, इसको मैं देखूँ कि ये स्पेस टाइम के अंदर किस तरह मूव कर रहे हैं। अब देखें जिस तरह अगर पॉइंट पार्टिकल है वो जब मूव करेगा तो एक वर्ड लाइन बना रहा है कि ये एक लाइन है जो वो बना रहा होगा। लेकिन अगर ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग मूव करेगा स्पेस टाइम के अंदर, तो ये देखें ये जो स्प्रिंग है जब ये मूव करेगा
तो ये एक एरिया ऑक्यूपाई कर रहा होगा, इसको वर्ल्ड शीट कहते हैं। मतलब जो पार्टिकल है वो एक लाइन बना रहा है, जबकि जो स्ट्रिंग है वो शीट बना रहा है, जैसे पेपर ऑफ शीट बनाएगा, और शीट का इज अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिसको आप इसका एरिया मेजर कर सकते हो। आई गेस समवन हैज अ क्वेश्चन, तो कौन है क्वेश्चन किसका है? ऑर्डर ऑफ स्ट्रिंग से मुराद ले रहे हैं कि जो मतलब जैसा मैं बात करूँ कि अगर आप मैं आपसे पूछूं कि एटम की क्या है, लेंथ क्या है, मतलब जो न्यूक्लियस है उसकी लेंथ क्या है, तो आप फिर सेंटर से डायमीटर मेजर करते हो कि मतलब आप उसकी कोई कह लो, जो आप बात कर रहे हो कोई थिकनेस कह लो, या उसकी जो लेंथ है वो बता दो, वो उससे मैं ऑर्डर ऑफ स्ट्रिंग से मुराद ले रहा हूँ। हाँ, स्ट्रिंग थ्योरी रिलेटिविस्टिक थ्योरी है हमारे पास, बिकॉज ये एक चीज़ों को क्वांटाइज कर रही होती है, और वो रिलेटिविस्टिक थ्योरी को प्रूव कर रही होती है। अच्छा जी, तो आगे जो ओपन स्ट्रिंग्स हैं वो एक शीट ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, जो क्लोज स्ट्रिंग्स हैं वो सिलेंडर ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। अगर मेरे क्लोज स्ट्रिंग्स हैं और मैं मूव होना शुरू करूंगा तो वो सिलेंडर को ऑक्यूपाई कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ब्रेन लिखा हुआ है, ये ब्रेन क्या होता है इसके बारे में मैं बाद में आऊँगा, तो मैं डीप ब्रेन को डिफाइन कर दूंगा। पर अभी तक आपको ये है कि आपको पता है कि पॉइंट पार्टिकल स्पेस टाइम में किस तरह मूव कर रहा है, जो कि 1 डायमेंशनल 0 पॉइंट पार्टिकल है वो, और वो 1 डायमेंशनल वर्ड लाइन बना रहा है। जो स्ट्रिंग्स हैं वो 1 डायमेंशनल है, जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है 2 डायमेंशनल एरिया को। ठीक है, ये हमारे पास स्पेस टाइम में उसकी वो डायनामिक्स है। अब हम आगे चलते हैं जो स्ट्रिंग्स की डायनामिक्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने, जिसमें आपको पता है कि अगर एक क्लास जो हमारा मैकेनिक्स है उसके अंदर हम देखते हैं F इज इक्वल टू ma, वो बता रहा होता है कि पार्टिकल के जो अगर डेफिनेट मैथ है, आप उसको मतलब इतनी फोर्स लगाओ तो इस एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू कर देगा। और फिर आपको 3 तरह की इक्वेशन होती हैं, एस इक्वल टू वी टी, बी एफ इक्वल टू वी प्लस ए टी, एस इक्वल टू वी आई टी हाफ ए टी स्क्वायर समथिंग। जो 3 इक्वेशन मोशन है, उससे आप ये बता सकते हो कि इस पॉइंट पे अगर एक कार है वो इस टाइम पे इधर है और वो इस स्पीड से मूव कर रही होगी, तो इतने टाइम के बाद वो इस जगह पे होगी और इतना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। ये सारी चीज़ें उसकी डायनामिक्स के रिजीम में आती हैं। इसी तरह अगर मैंने ये चेक करना हो कि जो पॉइंट पार्टिकल है वो किस तरह मूव कर रहा है स्पेस टाइम के अंदर, तो उसके लिए हम मैकेनिक्स के अंदर एफ इज इक्वल टू एम ए वाला एक डायनामिक्स का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम एक्शन को डिफाइन करते हैं। जो एक्शन होता है किसी भी चीज़ का, वो डिफाइन करता है डायनामिक्स को। अब ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये कहाँ से आई है, ये किस तरह आई है, इसकी बहस में हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो जिन्होंने मतलब ये चीज़ें पढ़ी हैं उनको पता होगा कि ये हैमिल्टन फॉर्मूलिज्म से आती हैं कि पहले आप किसी भी सिस्टम का लैग्रांजियन डिफाइन करते हो। अब लैग्रांजियन क्या है, वो उसकी मतलब एक एनर्जी की स्टेट होती है, वो डिफाइन करते हो, और फिर उसको पूरी स्पेस से इंटीग्रेट करके हम एक एक्शन डिफाइन कर लेते हैं। अब ये एक पॉइंट पार्टिकल का है। इस तरह स्ट्रिंग्स का भी एक एक्शन होता है जिसको पॉलीएटॉमिक एक्शन कहते हैं, और वो ये वाली चीज़ है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को बड़ी खौफनाक किस्म की नजर आ रही होगी, जी क्या है, इसके बाद इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मगर ये क्या आप स्ट्रिंग्स जो ये वाली स्ट्रिंग्स हैं, ये जब स्पेस टाइम में मूव कर रही हैं, तो उनकी जो डायनामिक्स है वही हमें ये वाला एक्शन बताएगा कि मतलब इस पॉइंट के ऊपर, इस टाइम टी के ऊपर, वो अभी स्ट्रिंग यहाँ पे है, अभी स्ट्रिंग यहाँ पे, अभी स्ट्रिंग यहाँ पे, वो इस तरह बिहेव कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें ये वाला एक्शन बता रहा होगा। तो अच्छा जुनेद, इसमें इंटरेस्टिंगली स्टूडेंट्स अगर देखें ना, तो जो पॉइंट पार्टिकल वाला एक्शन है उसमें डी टाउ है ना, उसके ऊपर इंटीग्रेट है, और स्ट्रिंग में वो डी स्क्वायर मेरा ख्याल बन रहा है, क्योंकि जब स्ट्रिंग मूव कर रही है तो वो 2 डायमेंशनल एरिया बना रही है। एग्जैक्टली जो 2 डायमेंशनल यहाँ पे 2 डायमेंशनल एरिया को ऑक्यूपाई करेगी, तो उसको ऊपर कोई भी इवेंट को डिफाइन करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। जिस तरह मुझे अगर इसमें डिफाइन करने के लिए एक कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इस जो शीट है उसको डिस्क्राइब करने में 2 कोऑर्डिनेट्स को चाहिए होंगे। इसी तरह स्ट्रिंग्स के अंदर जहाँ पे मैं डी स्क्वायर सिग्मा लिया, अभी सिग्मा क्या है, ये स्ट्रिंग्स के अपने कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको हम नहीं देखते भी। अच्छा, एक और रिजल्ट मैं ये बताना चाहूँगा, जो हमने बात की 2 तरह के स्ट्रिंग्स होते हैं, ये तो हमने जनरल एक्शन लिख दिया स्ट्रिंग का। जो ओपन स्ट्रिंग्स होते हैं एक्चुअली में वो जो है वो हमें एक फील्ड को जनरेट कर रहे होते हैं, जो कि हमें पता है, पहले भी हमने बात की। जो ओपन स्ट्रिंग्स हैं वो सारे के सारे मैटर पार्टिकल्स को जनरेट करती हैं, और हर पार्टिकल के कोरस्पॉन्डिंग को कोई फील्ड होती है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया, जो कि हमारा की आइडिया है क्वांटम फील्ड थ्योरी का। इसी तरह जो क्लोज स्ट्रिंग्स होते हैं वो ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये वो पॉइंट है जो आपको अभी याद रखना है, तो हमें इस पॉइंट को, जो ये वाला पॉइंट है, ये हमें अगली स्लाइड में यूज हम करेंगे कि जो क्लोज स्ट्रिंग्स हैं
वो ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बिकॉज वो जो एक फील्ड जनरेट करती होती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है, उनके कोरस्पॉन्डिंग हमें जो पार्टिकल मिलते हैं वो ग्रेविटॉन्स होते हैं। तो ये उनके मतलब चीज़ें हैं। अच्छा, अब आगे हम ये उनकी डायनामिक्स क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं एक मार्केट में डिफरेंट तरह की वर्जन है स्ट्रिंग थ्योरी के। फॉर एग्जांपल जब आप फिजिक्स करना शुरू हुए थे तो पहले आपका फंडामेंटल फिजिक्स होती थी, मतलब आप क्लासिकल मैकेनिक्स भी कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी कर रहे हो, वेव एंड ऑसिलेशन भी कर रहे हो, मतलब सारी की सारी एक ही फील्ड में आती थी। तो हम है मोहम्मद बिलाल आजम जरा फॉर्म आफ्टर ठीक है देखिए इसको अभी जरा फॉर्म नो नो इट्स नॉट कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, वो कॉमा इक्वेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैंने दिखा दूं आप किस फॉर्म की बात कर रहे हो? तो फिलहाल प्लीज ओपन अप योर माइक। ये जो क्लोज स्ट्रिंग में आपने जी म्यू न्यू के बाद लिखा हुआ है। ओह हाँ, इसके आगे कुछ टर्म्स आती हैं, वो टर्म मैंने एक्सक्लूड कर दी हैं। मतलब अच्छा, यहाँ पे एक फील्ड है ना, यहाँ पे भी कुछ और भी फैक्टर्स आएंगे जो स्केलिंग फैक्टर्स कहते हैं, उनको मैंने अगर शो नहीं किया पर डॉट डॉट लगा दिए तो कंटिन्यूएशन होगी हमारे पास। दैट्स नॉट काइंड ऑफ कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। सही, ठीक है। अच्छा, अब हमने जिस तरह हम पहले हर तरह की फिजिक्स कर रहे थे, जब हमारा काफी ज्यादा नॉलेज होना शुरू किया फिर हमने उनको कैटेगराइज कर दिया कि नहीं ये क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये क्वांटम मैकेनिक्स है, ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, ये वेव एंड ऑसिलेशंस हैं, और ये स्पेशल रिलेटिविटी है। अब इसी तरह काम स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर भी हुआ। पास्ट 30 ईयर्स के अंदर 3 डेकेड्स के अंदर स्ट्रिंग थ्योरी हमने पूरा काम कर लिया था, तो हमने उनको कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। एक तरह अब हमारे पास 5 तरह के वर्जन है स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर। पहला है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2A, थर्ड वन इज टाइप 2B एंड द फोर्थ वन इज हिटोरिक। और हिटोरिक का एक ग्रुप है, एक पार्ट है, और फिर हिटोरिक के ये वाला पार्ट है। तो 1 2 3 4 और 5 काइंड ऑफ वर्जन है हमारे पास, जो कि डिफरेंट और सबको हम स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। मेरा जो काम है वो इन पहली 3 स्ट्रिंग थ्योरी में है। टाइप 1 स्ट्रिंग थ्योरी को बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं, और ये टाइप 2 है और ये टाइप 2B है। इनमें क्या होता है उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन किया ये जो पांचों स्ट्रिंग थ्योरीज हैं, ये जो हमारे पास कंसिस्टेंट है, ये हमारे पास कंसिस्टेंट है 11 डायमेंशन के अंदर। सॉरी हाँ 10 डायमेंशन में कंसिस्टेंट है हमारे पास। मतलब अगर हमने किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना होगा, किसी इवेंट को डिस्क्राइब करना होगा इन स्ट्रिंग थ्योरी, तो हमें 10 डायमेंशन चाहिए। मतलब इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँ कि अगर आप जब मैंने स्नैप किया, तो अगर मैंने इस इवेंट को डिस्क्राइब करना है तो मुझे 4 तरह के कोऑर्डिनेट्स चाहिए कि मैं x, y और z 3 जो स्पेशल कोऑर्डिनेट्स हैं, और द फोर्थ इज टाइम कि मैंने इस टाइम के ऊपर स्नैप किया, और जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ उसका मतलब ओरिजिन से जो मेरा रूम का ओरिजिन है उससे x कोऑर्डिनेट कितना है, y कितना है और z कितना है। तो इसी तरह स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं कि जब आपने स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर कोई फिनोमेना को डिस्क्राइब करना है तो आपको एक्चुअली में 10 डायमेंशन चाहिए। 10 डायमेंशन होंगे तो ये थ्योरी कंसिस्टेंट होगी। और ये पांचों की पांचों जो डायमेंशन है ये हमारे पास सुपर सिमेट्री से लिंक होती है। अगर सुपर सिमेट्री होगी तभी हमारे पास 10 डायमेंशन होंगे। भी सुपर सिमेट्री क्या है? सुपर सिमेट्री ये कहती है कि आपके पास जितने नंबर ऑफ आपके पास उसके पार्टिकल्स हैं उतने नंबर ऑफ एंटी पार्टिकल्स भी होने चाहिए। मतलब जितने नंबर ऑफ आपके पास फर्मियॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ बोसॉन्स भी होने चाहिए। तो एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जो सन जो कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जो कि एक लेबोरेटरी बनाई है, जो कि पार्टिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है और इवन के एक्सपेरिमेंटल थ्योरी में सबसे बड़ी लेबोरेटरी मानी जाती है, जिसको हम सन के नाम से जानते हैं, तो जिनीवा स्विट्जरलैंड में मतलब वकूफ़-पज़ीर है। तो उसका भी जो मेन मकसद था, उसका एक्चुअली में 3 मेन काम थे जो उसने करने थे एक्सपेरिमेंटली। पहला काम ये था कि उसने हिग्स बोसॉन को डिस्कवर करना था, वो उसने 2012 में डिस्कवर कर लिया था। दूसरा था कि उसने ग्रेविटॉन को डिस्कवर करना था जो कि स्ट्रिंग थ्योरी प्रिडिक्ट करती है। और तीसरा है उसने सुपर सिमेट्री फाइंड आउट करनी थी कि हमारी नेचर में सुपर सिमेट्री है कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली 3 डेकेड गुजर चुके हैं और हमने अभी तक सिवाय हिग्स बोसॉन के ना तो सुपर सिमेट्री डिस्कवर की है अभी तक और ना ही हमने ग्रेविटॉन डिस्कवर किया है। तो ये पांचों की पांचों थ्योरी सुपर सिमेट्री से भी कंसिस्टेंट है और इनके लिए हमें 10 स्पेस टाइम डायमेंशन चाहिए। अच्छा, अब एडवर्ड व्हिटन जो कि इस सेंचुरी का सबसे बड़ा स्टैटिस्टिक्स फिजिक्स माना जाता है, उसने इन पांचों थ्योरीज को कंबाइन कर दिया और एक थ्योरी बनाई जिसको एम थ्योरी कहते हैं। और ये थ्योरी
11 डायमेंशन पे काम कर रही होती है। मतलब अभी हमें 10 डायमेंशन पे काम कर रहे थे, उनने सबको कंबाइन किया कि नहीं हमने इन पांचों को नहीं पढ़ना, हमने एक थ्योरी को पढ़ना जिसको हम मतलब एम थ्योरी ही एक ऐसी थ्योरी है जिसके बारे में गूगल और बाकी जो एक इनफॉर्मल वर्ड यूज करते हैं, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। मतलब ये वो थ्योरी है कि इससे हम अगर हम ये मालूम कर लें तो एक्चुअली में हम सारी चीज़ें बता पाएंगे। जिस तरह आई गेस इस टॉक के शुरू में मोहम्मद अली शहबाज साहब जो हैं उन्होंने ये रेफरेंस किया था कि जब भी मैं आइंस्टाइन की बात करते हैं तो हम E=mc² कह देते हैं, हम न्यूटन की बात करते हैं तो F=ma कह देते हैं, और हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम ले लेते हैं। तो आया कि स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर भी क्या कोई ऐसी इक्वेशन है जिसके बारे में हमसे ये बताएं ओके ये स्ट्रिंग थ्योरी है। तो जी अली शहबाज साहब के ये जो हमारा एम थ्योरी है, आल्दो के अभी तक इसकी पूरी इक्वेशन ड्राइव नहीं होगी, अगर हमारे पास ये आ जाएगी तो हम कहेंगे हाँ भी ये वो इक्वेशन है जिससे हम हर पूरी कायनात का हर फिनोमेना एक्सप्लेन कर देंगे। तो जो इस वक्त दुनिया के जीनियस माइंड्स हैं वो इसी थ्योरी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इसी को थ्योरी ऑफ क्वांटम ग्रेविटी भी कहते हैं और थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कहते हैं और स्ट्रिंग थ्योरी भी कहते हैं, तो जो भी आप उसको कहना चाहो। अच्छा जुनेद, काइंडली ये बताइएगा कि जो आपने 5 डिफरेंट मॉडल्स बताए स्ट्रिंग थ्योरी के, तो उनमें कोई क्या कमी थी बुनियादी जिसकी वजह से एम थ्योरी की जरूरत पड़ी है, या जस्ट ये कोई मैथमेटिकल ट्रिक है? नहीं, ये पांचों के पांचों थ्योरी एक ही तरह काम होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। तो जो हमारे पास टाइप 1 थ्योरी है ना, इसको बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, ये कहती है कि एक्चुअली में 10 डायमेंशंस भी नहीं है, एक्चुअली में 26 डायमेंशंस है। वो कहती है कि अगर सुपर सिमेट्री आपके पास नहीं होल्ड करती तो ये जो 10 डायमेंशन है एक्चुअली में 26 डायमेंशन में चाहिए किसी भी फिनोमेना को डिस्क्राइब करने के लिए। सिमिलर टाइप 2 एक स्ट्रिंग थ्योरी कहती है ये इस टाइप 1 का एक स्पेशल काइंड है जो कि ये कहती है कि ये वाली थ्योरी है ये लो एनर्जी रिजीम में काम कर रही होगी। कि मतलब आपको ग्रेविटी है उस पर जो अगर मैं बात करूँगा, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, 2 ओपन स्ट्रिंग्स हैं आपस में, अब ये स्ट्रिंग एक पार्टिकल को जनरेट कर रहा होगा, ये वाला स्ट्रिंग एक दूसरा पार्टिकल जनरेट कर रहा होगा। अब मसला ये है कि ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये आपस में भी तो इंटरेक्ट कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली पर जैसे पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो स्ट्रिंग्स भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे। तो हम फॉर टाइम बिंग ये कहते हैं कि हम इन 2 स्ट्रिंग्स की जो आपस की इंटरेक्शन है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। एक्चुअली में हम जो हमारे पास EMP होती है उसमें हम ये काम कर रहे होते हैं कि अगर हमारे डिफरेंट पार्टिकल्स मौजूद हैं और हमने किसी पॉइंट P के ऊपर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या कर रहे होते हैं कि हम कहते हैं कि हम पहले एक पार्टिकल पकड़ते हैं और इस पॉइंट P पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, फिर हम दूसरा पकड़ते हैं फिर उसकी निकाल, फिर तीसरा पकड़ते हैं, इससे हम करते हैं कि सारे पार्टिकल्स की इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कलेक्टिवली निकाल लेते हैं। मगर अगर देखा जाए एक्चुअली में तो वहाँ पे आप एक बहुत बड़ी एक लिमिटेशन लगा रहे होते हो, तो जो सारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं वो आपस में तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी आपस की इंटरेक्शन का भी तो पॉइंट P पे फर्क पड़ेगा, लेकिन उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। इसी तरह टाइप 2 भी काम कर रही होती है, इसी तरह टाइप 2 की अपनी लिमिटेशंस हैं। अच्छा, इसमें जो टाइप 2A की आपने बात की है, हम जानते हैं कि जो ग्लूऑन्स हैं उनके ऊपर कलर चार्ज होता है और वो सेल्फ इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन जो फोटॉन्स हैं वो न्यूट्रल होते हैं चार्ज के हवाले से, तो वो जो है वो सेल्फ इंटरेक्शन नहीं करते। स्ट्रिंग में जो चार्ज है वो क्या चीज है, कलर है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज है, क्या चीज है? नहीं, स्ट्रिंग में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। एक्चुअली में जो पार्टिकल फिजिक्स है ना इसको SU3 थ्योरी भी कहते हैं और ये स्ट्रिंग थ्योरी की एक सब टाइप है। स्ट्रिंग थ्योरी की स्पेशल टाइप है जिसको हम SU3 कहते हैं, जो कि हमें पार्टिकल फिजिक्स या QC की दे रही होती है। तो पार्टिकल फिजिक्स के अंदर ग्लूऑन्स होते हैं और एक्चुअली में हमने पूछा बात जो ग्लूऑन्स हैं वो क्या है, वो फोर्स कैरियर्स हैं जो कि 2 क्वार्क्स को आपस में कभी भी अगर आप 2 क्वार्क्स को कभी मतलब जितना मर्जी खींचे भी और जैसे वो टूटेंगे तो सिंगल क्वार्क कभी भी नहीं बनेगा, उसी वक्त एक और क्वार्क बन जाएगा और उनके दरमियान भी अगेन वो ग्लूऑन्स ही देंगे। तो स्ट्रिंग थ्योरी का एक आइडिया ये भी है, जो आप कह रहे हो ना कि 2 क्वार्क्स के दरमियान ग्लूऑन्स हैं, तो स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं उनका जो ग्लूऑन्स की स्ट्रीम लाइन है ना वो एक्चुअली में स्ट्रिंग्स होती है, वही एनर्जी है जिसको हम ग्लूऑन्स कह रहे होते हैं। तो ये वो जी, ये ग्लू बॉल्स का शायद आपने सुना हो ना, तो ग्लूऑन्स आपस में इंटरेक्शन करके ग्लू बॉल्स बनाते हैं ड्यू टू देयर कलर चार्ज, लेकिन फोटॉन्स में इस तरह की हम सेल्फ इंटरेक्शन नहीं देखते, वो फोटोन बॉल्स नहीं बनाते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी सेल्फ इंटरेक्शन ग्लूऑन्स की इसलिए होती है कि उन पे कलर चार्ज है, लेकिन स्ट्रिंग्स को अगर आप सेल्फ इंटरेक्शन के तौर पे ले रहे हैं तो क्या वो बुनियादी फैक्टर है, मतलब किस बुनियाद पे ये आपस में सेल्फ इंटरेक्शन कर रहे हैं?
शायद नहीं, इसका मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है कि मतलब इसको स्किप करता हूँ, हाँ, नहीं आइडिया। चलें चलें आगे फिर बात करते हैं। ठीक है। जुनेद, एक सवाल है हाँ जी। कि जिस तरह अभी आपने एक इवेंट बताया कि 4 डायमेंशन में किस तरह अकर कर सकता है, तो इस तरह 10 डायमेंशन की भी कोई सादा अल्फाज में इसको समझा सकते हो कि ये इस तरह इवेंट अकर कर रहा है 10 डायमेंशन में? हाँ, इसका स्टीफन हॉकिंग ने बड़ा अच्छा एग्जांपल दी थी कि अगर आपने अपनी जो कार है वो पार्किंग में खड़ी की है और फिर आपने किसी जगह चले गए हो, आपने वापस आना है, तो एक्चुअली मेरे को 11 डायमेंशन चाहिए अकॉर्डिंग टू एम थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर मैंने जैसे स्नैप की है, तो अब मसला यहाँ पे यही आता है कि जो ह्यूमन काइंड है ना, ये इधर जो ह्यूमन बीइंग है, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है और हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसी वजह से हम 3 डायमेंशन को परसीव कर सकते हैं और हमारे लिए काफ़ी आसान है एक्स वाई जी, बिकॉज एक्स वाई जी को हम फिजिकली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मसला ये कि हमारे लिए जो टाइम डायमेंशन है वो एक फोर्थ डायमेंशन है, उसको हम फिजिकली कभी परसीव नहीं कर सकते। मतलब यही वजह है कि मतलब अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं टाइम को जिस तरह मैं एक्स वाई जी को मतलब देख रहा हूँ, मैं टाइम को भी ऐसा देख पाऊंगा, तो एक्चुअली ऐसा कभी भी नहीं है। हाँ, मेरे जेन में उसकी डिपिक्शन है कि टाइम इस तरह का होता है जिसको हम क्लॉक कहते हैं। एक्चुअली में वो भी हमें ह्यूमन ने खुद ही बनाया हुआ है। तो एक्चुअली में टाइम एक डिफरेंट वो डायमेंशन है, लेकिन वो 4 डायमेंशन है, लेकिन हम जो ह्यूमन बींग्स हैं उसको परसीव नहीं कर सकेंगे। इसी तरह अगर हमसे ये पूछोगे कि अगर मैं स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर 10 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, मतलब ये मैं सिर्फ 3 डायमेंशन को ही परसीव कर पाऊंगा एक्स वाई जी। जो ऊपर की डायमेंशन है टाइम है और जो बाकी स्पेशल डायमेंशन है जिसको आप कह लो ए बी सी डी ई एफ, मतलब एक्स वाई जी आपके पास 3 वो हो गई और बाकी आपको चाहिए 8 डायमेंशन स्पेशल और 1 डायमेंशन टाइम की। तो मतलब 4 डायमेंशन आपको ऑलरेडी मौजूद हैं, बाकी आपको 6 डायमेंशन चाहिए और उसको परसीव करना आई गेस किसी के भी ह्यूमन टाइम में तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ह्यूमन कभी भी इसमें इवॉल्व नहीं हो पाएंगे कि वो इवन के 5 डायमेंशन से ऊपर की भी चीज़ को परसीव कर पाए। तो इसलिए इसको सिर्फ हम ये एज अ वेरिएबल्स कंसिडर कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स हैं, जिस तरह एक्स वाई जी हैं, इसी तरह हाँ बाकी भी होंगे जिनको हम ए बी सी डी या क्यू आर एस टी डिफाइन कर नाम दे सकते हैं, लेकिन उनको जिस तरह हम टाइम को परसीव नहीं कर पाते, इस तरह हम उनको भी परसीव नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारे पास डीप ब्रेन है, और ये डीप ब्रेन है जो कि हमारे पास हमें हेल्प आउट करेंगे स्ट्रिंग थ्योरी की एप्लीकेशंस को समझने के लिए। अच्छा, अब इसको इसको बताने से पहले ना मैं अस्यूम करता हूँ कि सब लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कोर्स पढ़ा होगा, या कम से कम एफएससी के अंदर उन्होंने जो कूलम्स लॉ का चैप्टर है उसको देखा होगा, कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा होगा उन्होंने, या गॉसेस लॉ पढ़ा होगा। अब गॉसेस लॉ में क्या होता है कि गॉसेस लॉ में आपके पास जो फंडामेंटल चीज़ होती है जिसको आप डिफाइन करते हैं खुद से, वो है गॉसियन सरफेस। अब हमें पता है कि गॉसियन सरफेस को किस तरह डिस्क्राइब करते हैं। गॉसियन सरफेस इज अ हाइपोथेटिकल सरफेस, वो रियल सरफेस नहीं होती, ठीक है, वो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही होती, मगर हम कहते हैं कि वो एक सरफेस है जिसने अपने लिए एक सोर्स को इनक्लोज किया है, चार्ज को इनक्लोज किया हुआ है, और हम उस सरफेस के ऊपर एक्चुअली में उस चार्ज सोर्स के उस सोर्स से लेकर जहाँ पे हमने अपनी गॉसियन सरफेस डिस्क्राइब की हुई है उस पॉइंट के ऊपर हम फील्ड निकाल रहे होते हैं या उसका इफेक्ट निकाल रहे होते हैं। तो एक्चुअली में जिस तरह ईएनएम के कोर्स के अंदर हम गॉसियन सरफेस को डिस्क्राइब करते हैं जो कि हाइपोथेटिकल सरफेस है, लेकिन उसका हमें फायदा ये होता है कि हम उसको डिफाइन करने के बाद अपनी जो कैलकुलेशंस हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, जो करंट्स हैं, उनको इजीली उस पॉइंट के ऊपर मेजर कर सकते हैं। मतलब जिस तरह गॉसियन सरफेस है वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इंपीरियन लूप है वहाँ पे हम उसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो इसी तरह स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर भी एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जो कि हमें हेल्प आउट करेगी उसकी फिजिक्स को जिस तरह मतलब गॉसियन सरफेस की बाउंड्री के ऊपर हम चार्ज की फिजिक्स को स्टडी करते हैं, उसी तरह हम स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर जो डीप ब्रेन्स हैं, जो हाइपोथेटिकल ब्रेन्स हैं, उसकी बाउंड्री के ऊपर स्ट्रिंग थ्योरी की फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मतलब अब डीप ब्रेन्स क्या होते हैं, एक हाइपोथेटिकल सरफेस है जिसके ऊपर ओपन स्ट्रिंग्स अटैच होते हैं, मतलब क्लोज स्ट्रिंग्स तो अटैच हो नहीं सकते, उनके एंड पॉइंट्स ही नहीं है। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि क्लोज स्ट्रिंग्स की तो कोई एंड पॉइंट्स ही नहीं है, मगर जो ओपन स्ट्रिंग्स हैं उनके 2 डेफिनेट एंड पॉइंट्स हैं, और हम कहते हैं कि ये डेफिनेट एंड पॉइंट्स हैं ये किसी न किसी एक सरफेस के ऊपर अटैच हुए होंगे। अगेन मैं बता दूँ को हाइपोथेटिकल सरफेस है, तो हम कहते हैं कि वो उसके ऊपर अटैच हुए हुए हैं, तो इसको हम डीप ब्रेन्स नाम दे रहे होते हैं। आई गेस वी हैव सम क्वेश्चन, किसी का हैंड रेज हुआ है।
नो वन, ओके। अच्छा तो अब डी ब्रेन जो है वो वेद भाई, डिफरेंट, हाँ जी एक क्वेश्चन है, जब आप बात कर रहे हैं कि वो किसी सरफेस से अटैच हुए होंगे, तो हाँ क्या, जी। ऑल हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो हाइपोथेटिकल सरफेस है, लेकिन क्या वो कोई बैकग्राउंड कंस्ट्रक्ट कर रही है सरफेस? तो मतलब क्या नहीं ये बैकग्राउंड डिपेंडेंट थ्योरी है? नहीं, ये बैकग्राउंड इंडिपेंडेंट है एक्चुअली में, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं आप इसको लिंक करो अपनी गॉसियन सरफेस के साथ, तो गॉसियन सरफेस कहाँ पे लिंक कर रही होती है? उसको कोई स्पेस टाइम बैकग्राउंड नहीं चाहिए होता, तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये तो आपकी अपनी एक फिजिकल परसेप्शन है, अपने सिर्फ कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। सही ये हुआ इस चीज को, या सही सही, मैनिफोल्ड ठीक टाइप। ठीक है। ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं कि अब जिस तरह मैंने क्वांटम फील्ड थ्योरी का वो आइडिया दिया कि वो कहता है कि हर पार्टिकल से कोरस्पॉन्डिंग फील्ड होती है, ये हर फील्ड से कोरस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स होते हैं। अब इसी तरह अब अगर आप ये देखो कि मेरे पास सपोज करो कि ये मेरे पास जो सरफेस है, जो मेरा मोबाइल है, ये पूरे सरफेस जो है ये एक डी ब्रेन है, और इसके ऊपर ये जो चीजें हैं, ये दो स्ट्रिंग्स के दो एंड अटैच हैं। अब मैं इस पूरी सरफेस के ऊपर जिसको मैं डी ब्रेन डिफाइन कर रहा हूँ, इसमें दो तरह के कोऑर्डिनेट्स हैं। मतलब एक कोऑर्डिनेट वो होगा जो हमेशा इस सरफेस के ऊपर स्टिक हुआ होगा। मतलब अगर कोई मैं एक वेक्टर को डिफाइन करता हूँ, अब ये वेक्टर में जहाँ मर्जी मूव करूँ, वो इस पूरी सरफेस में मूव कर सकता है विदाउट लीविंग इट सरफेस। तो इसको हम कहते हैं कि वो वेक्टर टेंजेंशियल वेक्टर है, मतलब वो कोऑर्डिनेट जो इस पूरी सरफेस के ऊपर टेंजेंट रहेगा। अब जैसे मेरा फोर में टेंजेंट है, इसको हम टेंजेंशियल कोऑर्डिनेट या टेंजेंशियल वेक्टर कहते हैं। अब इसी तरह एक और कोऑर्डिनेट भी है जो इस पूरी सरफेस के ऊपर रिजाइड कर रहा होगा, जो कि उसका क्या है, नॉर्मल कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल दिस, अब ये जो मतलब आप देख रहे हो, तो जो ये बॉल पॉइंट है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है और नॉर्मल का प्लेन है, और ये हमेशा जैसे मूव करना शुरू करोगे इसके ऊपर, ये हमेशा इसके नॉर्मल का प्लेन होगा। अब इसी तरह हमारे पास कुछ फील्ड होंगी जो कि टेंजेंशियल के कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंशियल फील्ड होंगी, और जो हमारे पास नॉर्मल है उसके लिए नॉर्मल फील्ड होंगी। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो डी ब्रेन्स हैं, डी ब्रेन्स के ऊपर फील्ड एसोसिएट हो रही होती हैं। तो ये है डी ब्रेन का बेसिक आइडिया। अच्छा जी, अब डी ब्रेन आपस में इंटरेक्ट किस तरह कर रहे होते हैं? तो पहली चीज़ है कि आप सपोज करो आपके पास दो तरह के डी ब्रेन्स हैं जो आपस में पैरेलल है, एक ये डी ब्रेन है और एक ये डी ब्रेन है। अब इसमें कितनी तरह की इंटरेक्शन पॉसिबल है? मतलब डी ब्रेन आपस में इंटरेक्ट भी तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ओपन स्ट्रिंग है जो कि डी, हाँ जी, ये डीप ब्रेन के हवाले से एक क्वेश्चन था कि ये कर्व्ड सरफेसेस होती हैं या फ्लैट सरफेसेस होती हैं? ये डिपेंड करता है आप किस डिमेंशन में बात कर रहे हो। मतलब मसला तो यही है ना, जिस तरह गॉसियन सरफेस है, आप जैसे मर्जी बना लो, आप स्फेरिकल सिमेट्री बना लो, सिलेंड्रिकल सिमेट्री की गॉसियन सरफेस बना लो, या आप रेक्टेंगुलर सरफेस की गॉसियन बना लो। ये डिपेंड करेगा आपकी प्रॉब्लम के ऊपर कि आपकी जो प्रॉब्लम है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने एक ऐसा ऑब्जेक्ट उसके अंदर इंक्लोज करना है, जिस तरह हम गॉसियन सरफेस के अंदर अगर मैंने एक स्फीयर को इंक्लोज करना है, तो मुझे उसके लिए गॉसियन सरफेस चाहिए, वो मुझे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस चाहिए। और सिमिलरली अगर मुझे एक सिलेंडर को ऑक्यूपाई करना है, मुझे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चाहिए। इसी तरह स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर भी अगर मुझे अपना ऐसा ऑब्जेक्ट जो 5 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसको ऑक्यूपाई करना है, तो मुझे उस टाइप का डी ब्रेन चाहिए होगा। अब अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कर्व्ड होगा, इन केस ऑफ ब्लैक होल्स कर्व्ड होते हैं, तो उसके लिए जो मुझे डी ब्रेन चाहिए होगा वो मुझे कर्व चाहिए होगा। और अगर मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो फ्लैट ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए मुझे फ्लैट डी ब्रेन चाहिए होगा। तो ये डिपेंड करता है आपकी जो आपका सोर्स है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, मैं इसकी इंटरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि अब एक तो ये है कि दो डी ब्रेन है, एक मैं D1 कह रहा हूँ, एक मैं D2 कह रहा हूँ। तो अब पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आपका एक ओपन स्ट्रिंग जो है वो पूरे का पूरा इसके ऊपर ही, मतलब एक एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट एक ही डी ब्रेन के ऊपर है। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक ओपन स्ट्रिंग का एंड पॉइंट D1 ब्रेन के ऊपर है और एक D2 ब्रेन के ऊपर है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उसका एक दूसरा ओपन स्ट्रिंग है जिसका एक एंड पॉइंट यहाँ पर है, जो पॉइंट आउट कर रहा है इस एंड पॉइंट के ऊपर। और चौथी पॉसिबिलिटी है कि जो एक और ओपन स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड पॉइंट D2 ब्रेन के ऊपर है। अब लिहाजा इस तरह जो चार तरह की कॉन्फ़िगरेशन आ गई हैं। अब मेरे पास दो डी ब्रेन्स हैं, तो चार तरह की इंटरेक्शन पॉसिबल है। और जैसा मैंने पहले कहा है आपको कि डी ब्रेन के ऊपर हर कोरस्पॉन्डिंग फील्ड होती हैं, तो इस ओपन स्ट्रिंग के कोरस्पॉन्डिंग एक फील्ड होगी, इस ओपन स्ट्रिंग के कोरस्पॉन्डिंग एक और फील्ड होगी, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक और फील्ड होगी, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एक और फील्ड होगी। दो डी ब्रेन्स हैं और मेरे पास चार फील्ड्स हैं। तो अगर सपोज करो मेरे पास n
नंबर ऑफ डी ब्रेन्स हैं पैरेलल, तो मेरे पास n की पावर स्क्वायर फील्ड्स होंगी, ठीक है। तो ये मतलब आइडिया है, डी ब्रेन हमारे पास सोर्स ऑफ फील्ड, हमें फील्ड को जनरेट कर रहे होते हैं हमारे पास। अच्छा, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब हम चलते हैं द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी, कि स्ट्रिंग थ्योरी की फिनोमेनोलॉजी क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, और उसके बारे में हम देखेंगे। अब तक हमारे पास स्ट्रिंग थ्योरी का इनफ इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। हमने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग थ्योरी क्या होती है, स्ट्रिंग थ्योरी स्पेस टाइम में बिहेव किस तरह कर रही होती है, स्ट्रिंग थ्योरी की टाइप्स क्या होती हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है। फिर हमने उसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ा डी ब्रेन्स का, जो कि ओपन स्ट्रिंग्स के लिए वेरीफाई होता है। ओपन, फिर हमें डी ब्रेन्स का, डी ब्रेन्स क्या काम करते हैं। डी ब्रेन्स कुछ भी नहीं है, वो एक फील्ड को जनरेट कर रहे होते हैं, और फिर डी ब्रेन्स जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू ओपन स्ट्रिंग्स, और उसके करस्पॉन्डिंग फील्ड्स होती है हमारे पास। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है हमारे लिए स्ट्रिंग थ्योरी के एप्लीकेशन डिस्कस करने के लिए। अच्छा, अब हमारे पास हम चलते हैं ड्युअलिटीज के। स्ट्रिंग थ्योरी में कुछ ड्युअलिटीज होती हैं जो कि हमें हेल्प आउट करती हैं फिजिकल फिनोमेना को स्टडी करने के लिए। तो वैसे कि मैं बात करूँ ड्युअलिटी की इन जनरल कॉन्टेक्स्ट, तो वो ये है कि अगर आपके पास सपोज करो एक कॉइन है, उस कॉइन के दो फेसेस हैं, फ्रंट फेस एंड बैक फेस। तो आपको पता है कि अगर मैं एक उसका फ्रंट फेस देख रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि उसका बैक फेस किस तरह का है, लेकिन अगर मुझे फ्रंट फेस नज़र आ रहा है, तो ये ऑब्वियसली बात है कि जो बैक फेस का जो पॉइंट होगा वो जो फ्रंट फेस है उसके पॉइंट से लिंक कर रहा होगा। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल ये 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस 5 के कोरस्पॉन्डिंग बैक साइड पे बेशक कोई ज्योमेट्री इधर, मतलब ये एक चांद बना हुआ है और एक तारा बना हुआ है, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री डिफरेंट है इस 5 के कोरस्पॉन्डिंग, मगर जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो सेम है। तो एक्चुअली में इन दोनों के दरमियान एक मैपिंग है, जिसकी मैपिंग है पॉइंट्स की मैपिंग है। तो अगर किसी तरीके से मुझे इन पॉइंट्स की मैपिंग का पता चल जाए, तो मुझे इसकी दूसरी साइड देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे फ्रंट साइड का पता हो कि फ्रंट साइड के पॉइंट्स ये हैं और वो इस तरह इस फंक्शन के थ्रू मैप कर रहे हैं, तो मैं बता पाऊंगा कि दूसरी साइड पे क्या चीज़ होगी हमारे पास। इसको कहते हैं ड्युअलिटी। अब फिजिक्स के अंदर ड्युअलिटीज का बड़ा एक मतलब इंटरेस्टिंग का मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको एक फिजिकल फिनोमेना है, ठीक है, और उसको डिस्क्राइब करने के लिए दो डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म है, दो डिफरेंट मैथमेटिक्स हैं, लेकिन वो दोनों डिस्क्राइब कर रही हैं एक सेम फिजिकल फिनोमेना को। अब इसकी एग्जांपल आप देख चुके हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में वेव पार्टिकल ड्युअलिटी होती है। और अगर आपने इसकी बहुत आसान एप्लीकेशन देखनी है, तो वो ENM के कोर्स के अंदर हमने जो गाउस लॉ देखा था और जो कूलम्ब लॉ देखा था, वो दोनों एग्जैक्टली डुअल है वन टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आपके पास सेट ऑफ पॉइंट चार्ज, सेट ऑफ पॉइंट वो हैं पॉइंट चार्जेस हैं, और आपने पॉइंट पी पे उनकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली है। तो दो तरीके हैं, या तो आप गाउस लॉ अप्लाई करो कि आप ऐसा करो, आप पूरे जितने भी चार्जेस हैं उनके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो, और उसके अंदर जो टोटल इनफ्लुएंस चार्ज है उसको कैलकुलेट करके उस पॉइंट पी पे आप ई डिफाइन कर दो। दूसरी चीज़ ये है कि आप गॉसियन लॉ यूज़ ना करो, आप प्रॉपर F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के Q1 Q2 ओवर R के और फार्मूला अप्लाई करो। पहले एक चार्ज का निकालो, फिर सेकंड चार्ज का निकालो, फिर थर्ड का निकालो, फिर सबको सम अप कर दो, और आपने देखा होगा कि दोनों बेस से आपको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। तो एक्चुअली उस पॉइंट पी को नहीं पता कि मैंने आपने गाउस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है या कूलम्ब लॉ से निकाली है, मतलब फिजिक्स सेम है आपके पास, लेकिन आपने मैथमेटिकल फॉर्मूलिज्म दो डिफरेंट यूज की हैं। तो इसी को ड्युअलिटी कहते हैं। अब इसी तरह स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर भी कुछ ड्युअलिटीज होती हैं। एक होती है टी ड्युअलिटी, एक होती है ADS CFT ड्युअलिटी, और इस तरह S ड्युअलिटी, U ड्युअलिटी, काफ़ी तरह की ड्युअलिटीज होती हैं, कोहोमोलॉजी भी होती है। मगर जो मेरा काम है वो टी ड्युअलिटी और ADS CFT ड्युअलिटी के ऊपर है। जो टी ड्युअलिटी है काइंड ऑफ हाईली मैथमेटिकल, तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। तो हम जो हमारा रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग टॉक होगी वो हमारी होगी ADS CFT ड्युअलिटी के ऊपर। समटाइम्स इसको होलोग्राफी भी कहते हैं। अभी होलोग्राफी क्या होती है इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है जो कि हार्डली 5 मिनट्स रहेंगी। ADS क्या होती है और CFT क्या होती है। तो अगर हमें ADS का पता होगा, CFT का पता होगा, तभी हम इसकी ड्युअलिटी को डिस्कस कर सकेंगे। तो ADS को हम कहते हैं एंटी डी सिटर स्पेस। अब ये एक ऐसी स्पेस होती है जिसका नेगेटिव कर्वेचर होता है। अभी नेगेटिव कर्वेचर क्या होता है इसमें अभी एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म ये वाला होता है। अब जिन लोगों ने आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पढ़ी होगी तो उनको पता होगा ये इक्वेशन क्या है। उनके लिए बता दूं कि ये आपके पास कर्वेचर है, स्केलर है, और ये आपके पास कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है।
अब आप देख रहे हैं कि कॉस्मोलॉजी कांस्टेंट जो है ये नेगेटिव है, मतलब आपका कोई कर्वेचर है तो कर्वेचर जो आर डिफाइन कर रहा है ये नेगेटिव में होगा। अब एक्चुअली में जो हमारी जो यूनिवर्स है वो नेगेटिव नहीं है, उसका कर्वेचर नेगेटिव नहीं है। हाँ, अब ये पॉसिबिलिटी कि या तो वो उसका कर्वेचर जीरो होगा या उसका कर्वेचर पॉजिटिव होगा। तो उसको मैं इस तरह डिफाइन करता हूँ कि अगर आपने पॉजिटिव कर्वेचर को डिफाइन करना है तो ये देखिए आपके पास एक सरफेस है, मैंने ये वाली सरफेस ले रहा हूँ जीरो कर्वेचर वाली, बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। अगर आपने देखना है कि इसका कर्वेचर जीरो है या पॉजिटिव है, आप ऐसा करो कि आप एक टेंजेंट वेक्टर ले लो, ये टेंजेंट वेक्टर है मेरा पोल पॉइंट, और आप उसको किसी एक पॉइंट पे रखो और आप उस टेंजेंट वेक्टर को थ्रू आउट उस सरफेस को मूव करना शुरू करो और आप देखोगे हम आप जितना मर्जी जहाँ मर्जी मूव करोगे उस सरफेस के ऊपर, तो टेंजेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी, आउटवर्ड ही रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी। अगर तो ऐसी सरफेस मिल जाती है आपको तो इसका मतलब उसका कर्वेचर जीरो है। और अगर आपको एक ऐसी कर्वेचर मिलती है, ऐसे सरफेस मिलती है जहाँ पे आप टेंजेंट वेक्टर को मूव करना शुरू करोगे लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो उसको हम कहते हैं वो पॉजिटिव कर्वेचर। फॉर एग्जांपल आप एक बॉल ले लो या स्फीयर ले लो, आप स्फीयर के ऊपर अगर अपना टेंजेंट वेक्टर इसको ये स्फीयर है, अगर आप अपना टेंजेंट वेक्टर मूव करोगे तो आप देखो तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है हमेशा आउटवर्ड ही, मतलब आप जिस पॉइंट पे भी हो जो टेंजेंट वेक्टर है वो हमेशा आउटवर्ड ही रहेगा, बाहर की तरफ ही रहेगा, लेकिन क्या है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। फ्लैट सरफेस पे वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता था। और जैसे आप स्फीयर के केस पे आते हो, जैसे आप स्फीयर के सरफेस के अलोंग मूव करोगे और टेंजेंट वेक्टर है वो हमेशा अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है लेकिन हमेशा आउटवर्ड है। अब इस तरह की कुछ ऐसी सरफेसेस भी हमारे पास मौजूद है, अगर वहां पे आप टेंजेंट वेक्टर को मूव करो जिस तरह इस केस के अंदर है, जो ये वाली सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो टेंजेंट वेक्टर है ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। कैसे? सपोज करो अगर मैंने ये वाली ऊपर वाली सरफेस लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर इस तरह होगा। अब जैसे जैसे मैं अपने टेंजेंट वेक्टर को मूव करूंगा मतलब इसके इस दूरी के अराउंड, तो अगर वो यहाँ पे है फिर इस तरह आएगा, इस तरह भी जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी डायरेक्शन इधर को हो जाएगी, हमेशा आउटवर्ड है, लेकिन जो पहला टेंजेंट वेक्टर था उसके इसके ऑपोजिट हो गई है। तो इस तरह की कर्वेचर होती हैं, सरफेसेस होती हैं, इनको हम नेगेटिव कर्वेचर कहते हैं। हमारी जो यूनिवर्स है वो आइदर के जीरो कर्वेचर की होगी या फिर पॉजिटिव कर्वेचर की होगी, अभी हमें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन जो एजीएस स्पेस है हमने कुछ सपोज करी वो हाइपोथेटिकल है, तो हम कहते हैं कि वो उसका जो कर्वेचर है वो नेगेटिव कर्वेचर होगा। अब ये कहाँ से आती हैं, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, तो वो है आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन। अगर आप आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को सॉल्व करते हो विद अ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ये डिफाइन कर रहा होता है, तो उससे जो आपको स्पेस मिलती है वो एडीएस स्पेस होती है। मतलब आपने ये समझना है कि आपके पास जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है वो जो प्रोड्यूस करती है, जो कि ग्रेविटी को डिस्क्राइब कर रही है, हमने पहले डिफाइन किया, तो जो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन होती है वो ग्रेविटी को डिस्क्राइब कर रही होती है, जो क्लासिकल होती हैं। और वो ग्रेविटी जो है वो कहाँ पे डिफाइन होती है, वो एंटी डिस्टेंस स्पेस पर डिफाइन होती है जिसका टेम्परेचर नेगेटिव होता है। तो ये है इसका बेसिक आइडिया एंटी डिस्टेंस स्पेस का। अब हम चलते हैं कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी के ऊपर। कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी जो है ये एक्चुअली में जिस तरह मैंने पहले बात की, जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो इज अ सबसेट ऑफ क्वांटम फील्ड थ्योरी। तो इस तरह जो क्वांटम फील्ड थ्योरी है जो उसकी जनरलाइजेशन है उसको हम कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी कहते हैं। तो कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी बिल्कुल क्वांटम फील्ड थ्योरी ही है, मगर उसमें हम ये कहते हैं कि उससे हम एक प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। तो ये है कि जो हमारे पास एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हो, अगर आपने छोटी ट्रायंगल ड्रॉ की है तो आपने इसका एक एंगल डिफाइन किया अल्फा बीटा और गामा। अब आपको पता है कि ट्रायंगल समेशन ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, तो आपने बता दिया अल्फा 30 है, बीटा 60 है एंड दिस वन इज 90, गामा इज 90। तो इससे आप बता दोगे कि मतलब अगर वही आप ट्रायंगल को जब आपने ट्रायंगल बनाई है इसको आप बड़ा जूम इन कर लेते हो, बड़ा कर लेते हो, तो क्या एंगल चेंज होंगे? नहीं, एंगल चेंज नहीं होंगे, एंगल उतने के उतने ही रहेंगे। तो ये पहली चीज़ है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि आप अपनी किसी भी फिजिकल फिनोमेना को जूम इन कर लो या जूम आउट कर लो, आपको उसकी फिजिक्स चेंज ना हो, उसकी मैथमेटिक्स चेंज ना हो। और इसको हम कहते हैं कि इसका कोई प्रेफरेबल स्केल नहीं होता, आप अपनी मर्जी स्केल को चेंज, स्केल को बड़ा कर लो या इसको छोटा कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो स्केल जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो स्केल बड़ा किस तरह होगा छोटा किस तरह होगा, ये होगा कन्फॉर्मल ग्रुप थ्रू। अब जैसा पता है कि जो हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं,
तो जैसा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमें यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो तो हमें यूनिटरी ऑपरेटर चाहिए होता है जो कि यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर रहा होता है। इसी तरह क्वांटम कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी के अंदर हमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, अगर ये मेरे पास स्केलिंग फैक्टर जो बताइए बताएगा कि जूम इन करे और जूम आउट कर रहे हो तो आपके पास जो ये फाइनल फिजिक्स है वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के थ्रू होगी जिसको हम कन्फॉर्मल ग्रुप कहते हैं। वो क्या होता है उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। जो मेरे में इंटरेस्टेड मेरे पार्टिसिपेंट है मुझे देखने के जो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं वो इन ऑपरेटर्स के थ्रू होती है। जैसा क्वांटम मैकेनिक्स में यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो यूनिटरी ऑपरेटर के थ्रू हो रही होती है। और इसी तरह पे इनका अपना कन्फॉर्मल ग्रुप भी होता है तो मतलब रिलेशन मतलब फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन आपके लिए जो बेसिक आइडिया है वो यही है, जो कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी बताती है कि आप अपनी फिजिक्स को जूम इन कर लो जूम आउट कर लो उससे फिजिक्स चेंज नहीं होगी, एंगल बिटवीन फैक्टर सेम रहेंगे। जो आपने स्केलिंग फैक्टर लिया हुआ है वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपके फिजिक्स के ऊपर। तो ये कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी होगी। अब हमने देखना है कि इनके दरमियान डुअलिटी क्या है जिसको हम होलोग्राफी भी तो जुनेद, हाँ जी ये जो कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, जिस तरह हम स्पेशल रिलेटिविटी में बात करते हैं ना कि लॉज ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ जी या इसी तरह जनरल रिलेटिविटी में जनरल कोवेरियंस की बात करते हैं कि आप हाँ जी ट्रांसफॉर्म करें कोऑर्डिनेट्स वगैरह को या फील्ड्स को तो उससे आपका लग्रांजियन चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये उसी हाँ तरह की चीज है कि आप जो स्केल को चेंज करें तो इनवेरिएंट रहे। एग्जैक्टली जो फील्ड थ्योरी ना उसमें हम मेट्रिक डिफाइन करते हैं। ये मेट्रिक है स्पेस टाइम मेट्रिक। तो वो ये कहता है कि आप अपना स्केलिंग फैक्टर जितना मर्जी चेंज कर लो आपका मेट्रिक चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह अब आप लग्रांजियन है आपको डिफरेंट तरह की ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं जिससे लग्रांजियन इनवेरिएंट रहता है। इसका मतलब अगर जैसा गेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है आप जितना मर्जी चेंज करो गेज को चेंज कर लो, कूलम गेज होता है और आपके पास लोरेंस गेज होता है, उससे अगर फिजिक्स चेंज नहीं होती। इसी तरह कन्फॉर्मर के अंदर कन्फॉर्मर गेज होता है, आप जितना मर्जी चेंज कर लो उसको आपकी फिजिक्स चेंज नहीं होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, अब हम बात करें डुअलिटी की। तो अभी तक जो हमने चीज़ कही थी क्लोज स्ट्रिंग्स हैं, क्लोज स्ट्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं ग्रेविटी को, ग्रेविटॉन्स को जो ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रही होती हैं और जो वो जिसको डिस्क्राइब करती है वो हमारे पास एडीएस स्पेस है, एंटी डी सिटर स्पेस है। सिमिलरली कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी है जो कि हमारे पास क्वांटम फील्ड थ्योरी की टाइप है। जो क्वांटम फील्ड थ्योरी है उसमें हमारे फील्ड होती हैं। तो अब लिहाजा जो एक हमारे पास ग्रेविटी आ गई है और उसके कोरस्पॉन्डिंग फील्ड्स आ गई हैं। अब हमने इनके दोनों के दरमियान एक रिलेशन फाइंड आउट करना है। यही काम एडीएस जीएफटी करती है। वो बताती है कि अगर आपने एक 5 डायमेंशनल एडीएस स्पेस लिया, एडीएस मैनिफोल्ड लिया, जिसको हम मैनिफोल्ड डिफाइन करते हैं, जो कि क्या डिस्क्राइब करता है ग्रेविटी को हमने पहले ही डिफाइन किया। तो जो हमारे पास एडीएस स्पेस है इसको मैं दिखा दूँ आपको। जो एडीएस स्पेस है हमारे पास ये ग्रेविटी को डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो लिहाजा हमने ऐसा किया कि हमने 5 डायमेंशनल एडीएस मैनिफोल्ड लिया जिसको हमने 6 डायमेंशनल स्पेस टाइम डायमेंशन में प्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हमारे पास जो 3D स्फीयर होता है वो 3D मैनिफोल्ड होता है, उसको अगर मैंने स्टडी करना है एक्सटर्नली तो मुझे 4 डायमेंशन में प्लेस करना होगा। तो वो जो स्फीयर होता है वो भी एक्चुअली में 4 डायमेंशन में होता है, एक्स वाई जीरो टाइम 4 डायमेंशन के अंदर होता है। जबकि जो सर्कल होता है, जो रिंग होता है, वो 3 डायमेंशन में ऑक्यूपाई हो रहा होता है। तो अगर मतलब इसका मतलब ये है तो जो ऑब्जेक्ट है अगर वो 2 डायमेंशनल का है तो वो ऑक्यूपाई होगा 3 डायमेंशन के अंदर। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल है तो वो ऑक्यूपाई होगा 4 डायमेंशन स्पेस टाइम के अंदर। और अगर मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया जिसको मैं एडीएस मैनिफोल्ड कह रहा हूँ जो 5 डायमेंशन का है तो वो 6 डायमेंशनल स्पेस टाइम में ऑक्यूपाई करेगा। दैट्स सिंपल। तो जो ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर रहा होगा, जैसा ये सपोज कर लें ब्लैक होल है आपके पास। तो ब्लैक होल इज काइंड ऑफ 5 डायमेंशनल मैनिफोल्ड जो कि एक 6 डायमेंशनल स्पेस टाइम के अंदर जिसको हम एंटी डी सिटर स्पेस कह रहे हैं उसमें रिजाइड कर रहा है। और उसकी जो बाउंड्री है उसके ऊपर हमने फील्ड को डिफाइन किया हुआ है। जिस तरह हमने पहले बात की थी कि मतलब जो गॉसियन सरफेस है उसकी बाउंड्री के ऊपर हम चार्ज का इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे होते हैं। इसी तरह हमने पहली बार जो डी ब्रेन्स होते हैं उसके ऊपर फील्ड एसोसिएट हो रही होती हैं। तो अगर मैंने अपनी एक एडीएस स्पेस को डिफाइन किया जो कि 6 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है, तो जो उसकी बाउंड्री पे चीज़ें डिफाइन होंगी वो डिस्क्राइब होंगी फील्ड से, और वो फील्ड है उसको
कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी ऑक्यूपाई करते हो, और कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी के अंदर है सुपर यंग थ्योरी, जिसके थ्रू वो फील्ड सारी डिफाइन हो रही होती है। अब होलोग्राफिक प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है कि आप आया कि आप इसके जो अंदर जो एडीएस स्पेस के अंदर होने वाली फिजिक्स है, जो कि सारी सारी ग्रेविटेशनल फिजिक्स है, बिकॉज हमें पता है जो एडीएस स्पेस है वो ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रही है, आप उसको स्टडी कर लो, या फिर आप उसकी बाउंड्री पे आ जाओ और उसकी फील्ड को स्टडी कर लो, वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। यही मतलब था ड्युअलिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाने का। ड्युअलिटी भी आपको ये बता रही है कि आपको अगर एक चीज का पता है, एक साइड का पता है, और आपको पता है कि वो दोनों आपस में किस तरह मैप हो रही है, तो आप ये बता पाओगे कि उसकी बैक साइड किस तरीके से होगी। ठीक है, तो इसी तरह हम इधर आ जाते हैं। ये हमारे पास आ गया कि होलोग्राफिक प्रिंसिपल का आइडिया, कि अगर हमारे पास एडीएस स्पेस की बाउंड्री पे कोई हमें फील्ड का पता है, तो हम उसके अंदर वाली चीज को डिफाइन। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि मैथमेटिकल अप्रोच के बारे में। तो हम बात करते हैं जो कोरिलेशन फंक्शंस होते हैं वो हमें इस थ्योरी की डायनामिक्स को गवर्न कर रहे होते हैं। तो अब मसला ये है कि अगर मुझे एडीएस स्पेस का कोरिलेशन फंक्शन पता हो कि एडीएस स्पेस में कोरिलेशन फंक्शन किस तरह एक्ट कर रहे होते हैं, तो मैं ये बता पाऊंगा कि जो उसकी बाउंड्री के ऊपर जो कोरिलेशन फंक्शन है वो किस तरह बिहेव कर रहा होगा। तो एक्चुअली में इसके कन्वर्ट टू है, मतलब जैसा मैंने यहाँ पे लिखा, आप देख रहे होगे जो मेरे पास एडीएस स्पेस का कोरिलेशन फंक्शन है वो ये वाला है। अब उसमें कुछ ये वाला फैक्टर है जो कि e नेगेटिव n स्क्वायर और s ये एक्शन है ग्रेविटी का, और मल्टीप्लाई सम क्वांटम करेक्शन। अब मसला ये है कि हमें ये तो पता नहीं है अभी तक कि ये जो क्वांटम करेक्शन है ये क्या चीज़ें हैं। मतलब हमें नहीं पता कि एडीएस स्पेस के अंदर जो ग्रेविटी है वो किस तरह बिहेव कर रही होती है, तो ये हमारे पास अननोन है। लेकिन सिमिलरली जो सीएफटी है उसके लिए हमें पता है कि बाउंड्री के ऊपर जो कोरिलेशन फंक्शन है वो किस तरह डिफाइन होता है, वो इस तरह डिफाइन होता है, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर मुझे ये चीज़ पता है और ये चीज़ इक्वलेंट है इस चीज़ के, तो मैं ये बता पाऊंगा कि एडीएस स्पेस में क्या हो रहा है। यही वो चीज़ थी जिसपे स्टीफन हॉकिंग ने अपना कमेंट किया था कि अगर तो जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स है वो रिजॉल्व हो गया था, कि वो ये था कि अगर आप कोई भी चीज़ ब्लैक होल के अंदर थ्रू आउट करो तो मतलब इसका मतलब है कि वो वापस नहीं कभी आ सकती, तो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ज़ाया हो गई है। मगर स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि ऐसा नहीं है, आप कोई भी चीज़ ब्लैक होल में थ्रू आउट करते हो तो जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन होती है वो एक्चुअली में उस ब्लैक होल की जो होराइजन होती है, जो उसकी जो मतलब होराइजन होती है वहाँ पे स्टोर हो जाती है। तो आपको क्या चाहिए, आपको उस होराइजन को स्टडी करना है और उससे इंफॉर्मेशन डिकोड करनी है, तो इससे आपकी इंफॉर्मेशन है वो डिकोड लॉस नहीं होगी। तो ये भी वही कहता है कि हमें देखा भी है कि अगर हमें बाउंड्री का पता हो तो बाउंड्री से हम ये बता पाएंगे कि उसके अंदर क्या काम हो रहा है। तो यही उसको मैप करने की कोशिश की गई है कि ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल के अंदर क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जो उसकी जो मतलब होराइजन है उस पर हमें पता है कि वहाँ तक हमारी एक्सेस है, तो वहाँ पे हमारी जो कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी है वो अप्लाई हो रही है। तो अगर हमें अपनी कन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी को पता चल जाए, अब देखो कि यहाँ पे कुछ आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, अभी हर डॉट एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक होल की। तो अगर मैं इन डॉट्स को स्टडी कर लूँ और बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट फंक्शन, तो मैं ये बता पाऊंगा कि ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है। तो यही वो चीज़ है जो कि स्ट्रिंग थ्योरी को, जिसमें स्ट्रिंग थ्योरी का फ्यूचर इस लिहाज से भी बरकरार रखा कि जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो हाईली मैथमेटिकल तो है ही, मगर साथ साथ तो फिजिकल थ्योरी भी है, वो आपको फिजिकल फिनोमेना के बारे में भी बताती है। तो यही वो अप्रोच है जिसको होलोग्राफी कहते हैं। अगर मैं इसको मजीद लेमन टर्म में बताना चाहूँ तो उसको मैं एक बड़ी आसान सी एग्जांपल में बताऊंगा कि जितना अब स्क्रीन पे आप मुझे देख रहे हैं, तो आपको मेरा एक 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। हालांकि मैं आपको पता है कि मैं इस तरह 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हूँ, लेकिन आप मुझे एज 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एज प्रोजेक्शन देख रहे हैं, मतलब आप मेरे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का आप स्क्रीन के ऊपर 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन देख रहे हैं। तो इसलिए मतलब ये एक आइडिया है कि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम अपने आप को 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, क्या पता हम भी कोई हायर डायमेंशन के प्रोजेक्शन हों। जिस तरह स्क्रीन पे आपको जो मैं हूँ 2 डायमेंशन नज़र आ रहा हूँ, क्या पता इस यूनिवर्स के किसी एज के ऊपर कोई हायर बींग्स बैठे हों और वो हायर बींग्स मतलब का जो प्रोजेक्शन है जो हम पे पड़ रहा है, और हम अपने आप को कॉन्शियसनेस और सारी वो चीज़ें डिफाइन करेंगे, हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास पूरा कॉन्शियसनेस भी है,
तो स्ट्रिंग थ्योरी यही कहती है कि जो पूरी यूनिवर्स है इट्स काइंड ऑफ अ होलोग्राम, एक होलोग्राम हो सकता है पूरी हायर बीइंग्स का। तो ये भी उसका एक आइडिया है क्योंकि जिसको हम होलोग्राफिक प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो अगर मैं तो अपने टॉपिक कंक्लूड करूं तो स्ट्रिंग थ्योरी यही है कि मतलब सिंपल एक ऑप्शन आइडिया जो कि कहते हैं जितनी भी चीजें हैं मेटल एनर्जी वो सब एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, वो कुछ भी नहीं है। और बाकी जितनी भी स्टडी है वो स्ट्रिंग थ्योरी है। और स्ट्रिंग थ्योरी आपको एक ट्रैक देती है, मतलब आपको एक मैकेनिज्म देती है कि आप एक स्ट्रॉन्गली गेज कपल थ्योरी को स्टडी कर लो बाय स्टडिंग वीक कपल बल्क थ्योरी। मतलब क्या कि आप अगर आपको इन चीज़ों का पता है, आपको गेज फील्ड्स का पता है, तो आप बल्क में होने वाली जो फिजिक्स है उसको डिस्क्राइब कर दो। ये हमारे पास स्ट्रिंग थ्योरी इसको भी ऑफर कर रही होती है। और फिर स्ट्रिंग थ्योरी और दूसरी चीज़ ये है जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो ग्रेविटोन प्रिडिक्ट कर रही है। तो ग्रेविटोन जो है अगर वो प्रिडिक्ट कर रही है तो इसका मतलब है वो स्टैंडर्ड मॉडल है उसको प्रोड्यूस तो कर ही रही है, लेकिन साथ साथ उस स्टैंडर्ड मॉडल के ग्रेविटोन भी दे रही है जिसको हम क्या कहते हैं सुपर स्टैंडर्ड मॉडल। तो जो स्ट्रिंग थ्योरी है वो आपको सुपर स्टैंडर्ड मॉडल भी देती है, आपको उसकी एप्लीकेशन भी देती है और डिफरेंट कंडक्टर्स भी दे रही होती है। तो ये थी पूरी एक टॉक जो कि स्ट्रिंग थ्योरी जो कि क्वांटम ग्रेविटी की अप्रोच थी, स्ट्रिंग थ्योरी जो कैंडिडेट थी स्ट्रिंग थ्योरी जिसका इंट्रोडक्शन था और फिर उसकी एक एप्लीकेशन थी। तो मैं इसको फिर कंक्लूड करूँ तो जुनैद, कंक्लूड करने से पहले थोड़ा सा ये जो हमने बात की है ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स तो हो गए, फ्यूचर प्रेडिक्शंस किस तरह हो सकती हैं स्ट्रिंग थ्योरी की, और थ्योरी किस तरह कहती है कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिनको मेजर किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा ब्रीफली आप बता दें। मसला ये है कि अगर हम अब जो हमने बात की है एडीएस टीएफ कोरस्पोंडिंग होलोग्राफी की, तो ये जो है ये अभी तक हमने पता कि एडीएस स्पेस है जिसका टेम्परेचर नेगेटिव है, एक्चुअली में हमारी यूनिवर्स का टेम्परेचर नेगेटिव नहीं है, हमारा यूनिवर्स का टेम्परेचर है वो पॉजिटिव टेम्परेचर है। तो एक्चुअली में जो पॉजिटिव टेम्परेचर की उसको हम कहते हैं डिसिटर स्पेस, जो नेगेटिव टेम्परेचर है उसको एंटी डिसिटर स्पेस कहते हैं और जो पॉजिटिव टेम्परेचर की उसको डिसिटर स्पेस कहते हैं। राइट नाउ हमारे पास थ्योरी जो हमें स्ट्रिंग थ्योरी की जो एप्लीकेशन है वो एडीएस सीएफटी को कोरस्पोंडेंस डिफाइन कर रही है, लेकिन हम एक ऐसी थ्योरी को भी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हम चाह रहे हैं डीएस सीएफटी कोरस्पोंडेंस हो, तो मतलब ताकि हम अपने यूनिवर्स को मॉडल कर सकें उसके कोरस्पोंडिंग। तो वो इधर ओपन प्रॉब्लम स्ट्रिंग थ्योरी जिस पे काम हो रहा है, काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस तरह का जो डीएस के साथ किसी का कोई कंजेक्चर हो वो हमें नहीं मिल पाया। लेकिन अगर हमें वो मिल जाता है तो फिर ही हम अपने ब्लैक होल्स को डिकोड कर पाएंगे और उसमें ये जान पाएंगे ब्लैक होल के अंदर क्या हो रहा है। इसके अलावा जो स्ट्रिंग थ्योरी है इसकी काफ़ी एप्लीकेशन जो हैं, स्ट्रिंग थ्योरी एक ये भी है जो आपको वो ये बताता है कि जो आपके यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स हैं जिसमें आपके पास कूलम्स कॉन्स्टेंट आता है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट आता है, प्लैंक्स कॉन्स्टेंट आता है और जो बाकी इस तरह फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू है, तो स्ट्रिंग थ्योरी इनको ये भी बताती है कि उन पैरामीटर की सिर्फ वही वाली वैल्यूज भी पॉसिबल हैं। मतलब अगर आप अपने मॉडल को उनमें जो आपके यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज को लाइटली भी चेंज करते हैं तो आप ये पूरी की पूरी जो यूनिवर्स कोलैप्स कर जाती है, वो होल्ड ही नहीं कर पाती। तो स्ट्रिंग थ्योरी उसका भी ऑफर करती है कि मतलब ये कैसे मतलब आपकी जो पूरी यूनिवर्स है उसकी जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी यही वैल्यूज भी पॉसिबल है। फिर स्ट्रिंग थ्योरी आपको ये भी डिफाइन कर रही होती है कि आपकी जो पूरी यूनिवर्स है वो इसी तरह की क्यों है, कार्बन बेस की क्यों है, और इसमें मतलब जो ह्यूमन बींग है जो इंटेलिजेंट बींग्स हैं वही क्यों है, यूनिवर्स इतना ही बिहेव क्यों कर रही है। आपकी यूनिवर्स में पूरे का पूरा डार्क मैटर है, आपको जो एंटी मैटर है वो मिलता ही नहीं है, और फिर जो डार्क मैटर है वो नहीं मिल रहा, आपको डार्क एनर्जी के बारे में नहीं पता। तो स्ट्रिंग थ्योरी की वो भी एप्लीकेशन है, मगर राइट नाउ मुझे उन चीज़ में इतना नहीं पता कि वो डार्क एनर्जी के साथ इंकॉर्पोरेट कर रही है, लेकिन इस तरह की काफ़ी चीज़ें स्ट्रिंग थ्योरी में हो रही हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि मैंने इसमें आपने देखो कि मैंने मैथमेटिक्स को कम इन्वॉल्व किया है, तो लेकिन ये मैंने अपना एक पोस्टर प्रेजेंट किया था लम्स के अंदर क्योंकि मेरे पूरे रिसर्च के ऊपर था जिसमें पूरा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, और ये मेरा थीसिस है जिसमें आप देख सकते हैं मतलब पूरी मतलब, और ये वो पेपर है जिसमें मैंने अपना पूरा रिसर्च की थी जो कि एडीएस सीएफई इसने डेवलप की थी। मेन इसमें जो साइंटिस्ट हैं जो कि जॉन मेल्डर सेना है, और यही वो पेपर है जो थ्योरेटिकल हाई एनर्जी फिजिक्स में इस वक्त तक सबसे ज़्यादा साइटेड पेपर है। इस पेपर की सबसे ज़्यादा साइटेशन थ्योरेटिकल फिजिक्स में हो चुकी हैं, और ये काफ़ी मतलब पॉपुलर पेपर है, और यही वो पेपर है जो कि
जॉन मेलासेना ने अपने आफ्टर पीएचडी में 2 साल बाद ही पब्लिश किया था, और इसी वजह से उनको आईएएस के अंदर इस वक्त प्रोफेसरशिप नहीं मिली हुई है और समथिंग लाइक दैट। तो ये की आइडिया ये भी है कि अगर इन्होंने एडीएस सीएफटी के करस्पॉन्डेंस डेवलप की थी, अगर कोई डीएस सीएफटी की करस्पॉन्डेंस डेवलप कर ले जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के करस्पॉन्डिंग होगी, तो उसके लिए शायद एक नोबेल प्राइज भी क्या 30 नोबेल प्राइज भी कम पड़ जाएंगे। ये इतना बड़ा एक फिजिक्स के अंदर एक मतलब आप कह लो कि सारी चीज़ें होंगी। तो स्ट्रिंग थ्योरी में एक्चुअली में इस तरह की ही एप्लीकेशन से ज़्यादा काम हो रहा है इस फील्ड के अंदर। तो ऐसा इसकी जो टॉपिक लो एनर्जी एप्लीकेशंस है, हाँ जी उनको हम सर्न में या अपने सैटेलाइट्स में कहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, कॉस्मोलॉजिकल स्केल पे या माइक्रो स्केल पे? मतलब ये कि अभी तक तो जो मेरे इल्म में है वो ग्रेविटॉन ही है जिसको हम तलाश करना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्रेविटॉन ही वो चीज़ है। देखो ग्रेविटॉन एक्चुअली में हम स्ट्रिंग, मैंने पहले बात की थी कि स्ट्रिंग थ्योरी जो है उसको हम डायरेक्टली वो नहीं कर सकते। उसकी मेन वजह यही है कि हमें उसका जो स्केल चाहिए वो प्लैंक स्टेंस का स्केल चाहिए, लेकिन हम उसकी इनडायरेक्ट एप्लीकेशन को एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि काइंड ऑफ हमारे पास है वो ग्रेविटॉन है। ग्रेविटॉन में वो ग्रेविटेशनल फील्ड जो मौजूद है हर जगह, हमें बस रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए जो हम ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रोड्यूस करें और जिससे ग्रेविटॉन निकल के सामने फोटॉन के पास आ जाए। जिस तरह हिग्स फील्ड का केस हमने किया था कि हमने हिग्स फील्ड के अंदर 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, जो कि हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लाइट करवाया, उनसे 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हिग्स फील्ड में दी थी, और वहाँ से हमें जो हिग्स बोson है वो फोटॉन होकर बाहर निकल के आ। जी बहुत शुक्रिया। बाकी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपके अगर कोई सवाल है तो वो ऑडियो में या चैट में आप 1 बाय 1 पूछते रहें। हाँ जी जुनैद भाई, हाँ जी एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट से हटके क्या इसके कोई मतलब ऑब्जर्वेशनली कंसिस्टेंट रिजल्ट्स भी हैं? फॉर एग्जांपल जैसे कॉस्मोलॉजी में इन्फ्लेशन की तरफ हम लोग आ जाएं, या पार्टिकल फिजिक्स में हायरार्की प्रॉब्लम है, मतलब कोई ऐसे रिजल्ट्स जिनको एक्सपेरिमेंट से हटके ऑब्जर्वेशनली चेक किया जा सके, या अभी सिर्फ मैथमेटिकली ही हमारे पास आइडियाज मौजूद हैं इसके? मतलब एक्चुअली में तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो अगर क्वांटम ग्रेविटी अगर हमने करनी है, उसको क्वांटाइज करना है, तो हमें न्यूमेरिकली हम अप्रोच यूज़ करते हैं। वे न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए हमें डाटा चाहिए होता है, और वो जो डाटा है हमारे पास वो हमें कॉस्मोलॉजी ही दे सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैं बार बार स्टेट कर रहा था कि हमें ये जानना है कि बिग बैंग जब हुआ तब क्या हुआ होगा। तो अगर मैंने बिग बैंग का मॉडल को सिमुलेट करना है, तो मुझे उसका डेटा चाहिए होगा, जो कि एक हमारे पास काफ़ी हद तक में डेटा रिसीव हो चुका है सीएनबी के फॉर्म के अंदर। लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है, हमें नहीं पता, कुछ ऐसे सीएनबी के अंदर भी काफ़ी ऐसा के पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम श्योर नहीं है कि उनका टेम्परेचर वैसा ही क्यों है, वो स्पेक्ट्रम वो फॉलो क्यों नहीं कर रही, तो ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए अगर आप स्ट्रिंग थ्योरी की बात करो मेरे नज़दीक, तो अब जो फ्यूचर है स्ट्रिंग थ्योरी का, मैंने वो ये देखा कि अब स्ट्रिंग थ्योरी को ज़्यादातर न्यूमेरिकल अप्रोच कर लेके जाया जा रहा है। इसमें आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए, मशीन लर्निंग के साथ आपको मतलब न्यूरल नेटवर्क आने चाहिए, मतलब आप उसको कंप्यूटेशनल मॉडल कर सको। और कंप्यूटेशनल मॉडलिंग के लिए आपको डाटा चाहिए होगा, और वो आपको तो कॉस्मोलॉजी देगी। मैं असल में मेरा यही क्वेश्चन था कि जो हमारे पास एक कॉस्मोलॉजी से या एलएचसी वगैरह से ऑब्जर्वेशनल डाटा आया है, क्या स्ट्रिंग थ्योरी की न्यूमेरिकल सिमुलेशंस उस डाटा को कॉरेस्पॉन्ड करती हैं? अभी तो काम हो रहा है, अभी ये मुझे नहीं पता कि उसके शायद करती होंगे नहीं, लेकिन आई गेस काम हो रहा है। तो इसी पे मतलब मैंने रिसेंटली एक वर्कशॉप अटेंड की थी स्ट्रिंग फिनोमेनोलॉजी की, तो वो भी यही बात कर रहे थे कि उन्होंने भी जो डाटा है उसको लेकिन असल असल में मसला बता के है, मसला जहाँ पे आता है वो ये है कि आपने जो आपने अपना सिमुलेशन करनी है, आपको डाटा माइनिंग करनी चाहिए या न्यूरल नेटवर्क चाहिए, तो आपने अपने कंपाइलर को ये बताना है कि उसने 10 डायमेंशन किस तरह डील करना है। दैट्स काइंड ऑफ वेरी मैसी थिंग। मतलब आपको ये बताना, आपको इस तरह ट्रेन करना है कि वो 10 डायमेंशन किस तरह परसीव करे। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो भी जिन पर काम हो रहा है, लेकिन राइट नाउ अभी इसकी स्ट्रिंग फिजिक्स कंप्यूटेशनल फिजिक्स के लिहाज से ना अभी उसकी रिसर्च अभी हो रही है। अभी वो रिसेंटली काम होना शुरू हुआ है। काफ़ी जो मतलब जीनियस माइंड्स हैं वो इस पर मूव करना शुरू किए हैं, लेकिन अभी तक इसका और कोई मतलब इतना नहीं है। सही। तो हमारे चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, आप काइंडली उनको भी देख हाँ जी, लीजिएगा। मैंने कैन बी कंसीडर मोर देन वन
time dimension instead of spatial dimension. नहीं एक्चुअली मैं अभी पहले मैं इसका आंसर कर दूं कि हाउ दिस मैथमेटिकल सिमुलेशन वेरीफाई दिस थ्योरी। एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब आप एक मॉडल बनाते हो आपको स्ट्रिंग थ्योरी का पता चल गया, आपको पूरी थ्योरी मौजूद है। जिसका पार्टिकल फिजिक्स में पार्टिकल फिजिक्स पूरी थ्योरी मौजूद है। आप पार्टिकल फिजिक्स मॉडल बना रहे होते हो, न्यूक्लियस का मॉडल अलग होता है, इलेक्ट्रॉन का मॉडल अलग होता है, तो आप उन मॉडल से कोरस्पॉन्डिंग डाटा को मैच कर रहे होते हो। तो स्ट्रिंग थ्योरी में भी बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास जितना भी डेटा कॉस्मोलॉजी से आ रहा है, आप उस डेटा के कोरस्पॉन्डिंग एक मॉडल बना रहे होते हो, जो कि उसको डेटा जो डेटा को रिसीव हुआ है और जो मॉडल आपने बनाया वो आपस में कंसिस्टेंट हो। जैसे ही आप एक मॉडल बनाया और जो आपको करंट डाटा आया है, अगर वो उसको प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, उसको दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा रनिंग के ऊपर, इसका मतलब है कि आपके मॉडल में खराबी है। तो आपको कुछ अपने पैरामीटर्स को चेंज करना होगा। तो जैसे ही आप चेंज करोगे और फिर आप उसको रन आउट करोगे और फिर देखोगे आपको जो रिजल्ट मिले हैं वो है कि नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा ईएनएम फील्ड के ईएनएम केस के अंदर आपने जो एक कूलम्स कांस्टेंट उसकी वैल्यू मेजर की थी 9 न्यूटन मीटर के पर कूलम स्क्वायर। तो वो भी एक्चुअली एम्पिरिकली डिस्कवर्ड लॉ था, लेकिन आपने डिफरेंट मॉडल टेस्ट किए, अपने एक्सपेरिमेंट से उनकी वैल्यूज निकाली और फिर आपने मैप आउट किया कि बाकी ये वाला जो मॉडल है ना जिसमें के आता है, अगर आप के नहीं लगाओगे तो एफ Q1 Q2 और आर के करते जाओगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो उसके साथ नहीं कॉरस्पॉन्ड कर देंगे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ। लेकिन जैसे ही आप के का फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाते हो तो वही आपके जो रिजल्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट से मैच होना शुरू हो जाते हैं। तो स्ट्रिंग थ्योरी में भी जो स्ट्रिंग थ्योरी कंप्यूटेशन है उसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि आप मॉडल बना रहे हो, डिफरेंट मॉडल बना रहे हो और फिर उसको एक्सपेरिमेंट जो अभी तक डाटा है उससे आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। मगर मसला ये है कि हमारे पास जो अभी डाटा है वो बहुत कम आया है, क्योंकि जो हमने स्ट्रिंग थ्योरी के मॉडल बनाए हैं वो हमने चारों पोस्ट को क्वांटाइज किया हुआ है। जबकि हमारे पास अभी तक इसमें हमारे पास जो यूनिवर्स का बिल्कुल अर्ली यूनिवर्स है जब बिग बैंग हुआ था वहां से लेके अब तक का डाटा नहीं वहां पहुंच पाया। तो ये कुछ प्रॉब्लम है हमारे पास जिसको हम डील कर रहे हैं। जब मैं ऊपर देखने कुछ ने पूछा था कैन वी कंसीडर मोर देन वन डायमेंशन वन टाइम डायमेंशन इंस्टेड ऑफ स्पेशल डायमेंशन। मतलब इसका मुझे क्लियर मतलब समझ नहीं आया, लेकिन मैं जहाँ पे मैंने समझा आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जिस तरह डिफरेंट डायमेंशन हैं, स्पेशल डायमेंशन एक्स वाई जी और एक टाइम डायमेंशन है। अगर मैं 10 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो उसमें 9 डायमेंशन जो हमारे पास है वो हमारे पास स्पेशल डायमेंशन है और 1 डायमेंशन स्पेस की है। तो टाइम सॉरी 9 डायमेंशन स्पेस की है और 1 डायमेंशन टाइम की है। तो टाइम तो हमेशा एक कोऑर्डिनेट हम मौजूद ही है जिसको हम फिजिकली परसीव सिर्फ क्लॉक की वजह से कर सकते हैं। बाकी अगर हम उसको परसीव करने जाएंगे तो वो हम परसीव नहीं कर सकते इसको। बताऊंगा हम खुद हाँ शायद कोई ऐसे हायर बीम्स मौजूद हों जो कि 3 डायमेंशन ज़्यादा के हों, तो उनके लिए मतलब जिस तरह आपको इंटरस्टेलर मूवी के अंदर दिखाया गया था कि जो हायर बीम्स हैं उनके लिए टाइम बिल्कुल ऐसे ही जितना हमारे लिए एक्स वाई जी है। जैसे हम एक्स वाई जी में आगे पीछे जा सकते हैं तो उसी तरह वो टाइम में आगे पीछे मूव कर सकते हैं, वो हायर बीम्स थे। लेकिन हम लोग 3 डायमेंशन से ज़्यादा के जो डायमेंशन है उसको परसीव नहीं कर सकते। प्लीज गेट द आइडिया ऑफ क्वांटाइजेशन अगेन। तो क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि इसको हाँ अगर लेमन टर्म में बताऊँ तो आपने क्वांटास डील करने हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटास होते हैं, आपको इंटेग्रल नंबर ऑफ एंटिटीज के ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। जबकि मेजोरिटी जो हमारे पास ग्रेविटी है वो क्लासिकल लेवल पे है, तो जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम ह्यूमन बीइंग है या बॉडी है, कार्स हैं, व्हीकल्स वगैरह हैं, वो सारी मैसिव है, काफ़ी मैसिव है और वो मतलब डिस्क्रीट में जो मोशन है वो डिस्क्रीट नहीं होती है। अगर आप ग्राफ भी ड्रॉ करें तो कंटिन्यूस ग्राफ फॉलो कर रहे होते हैं, वहाँ पे इंटेग्रल आप पूरा लगा रहे होते हैं। तो हमने ये करना है कि हमको इतना चंक्स बना दें, इतना डिवाइड कर दें कि करते 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 हम एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएं जिसके जो कि मजीद डिवाइड ना हो सके। तो जब हम वो स्ट्रिंग थ्योरी केस में ग्रेविटॉन है, बिकॉज ग्रेविटॉन को हम मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम ग्रेविटॉन को इस तरीके से ग्रेविटॉन फिजिक्स डिस्कस कर लेंगे तो हम एक्चुअली उसको क्वांटाइज कर देंगे। ये काइंड ऑफ लेमन है, लेकिन अगर एक्चुअली में अगर आप मास्टर ग्रेजुएट हैं, अगर सलीना है, तो अगर आप मास्टर पीजी के ग्रेजुएट हैं तो आपको पता होगा कि क्वांटाइजेशन का मीन क्वांटम फील्ड थ्योरी के पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि कुछ कम्प्यूटेशन रिलेशंस होते हैं जो कि आपको होल्ड करने होते हैं, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं और वो कुछ ऑपरेटर्स जो होते हैं वो आपस में कैनोनिकल कंप्यूटेशन रिलेशन को होल्ड कर रहे होते हैं, तो तभी आप उनको क्वांटाइजेशन डिफाइन कर रहे होते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव कर्वेचर?
could you explain briefly? हाँ मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव कर्वेचर क्या होते हैं, तो या इस यहाँ पे आप देखें, आप सिंपल ऐसा करें कि आप कुछ सर्फेसेस लें, उसके ऊपर एक टेंजेंट वेक्टर क्या होता है कि वो उस पॉइंट के बिल्कुल टेंजेंट होगा, एक पॉइंट हो। तो आप एक ऐसा करें कि आप एक सर्फेस लें और उसके ऊपर टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करें। मतलब मैंने ये सर्फेस लिया, मैंने टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर, ये टेंजेंट वेक्टर है। तो मैं जैसे जैसे इसके अराउंड मूव करूंगा, ठीक है, तो इसको आपने यूं समझना होगा, मैं जैसे जैसे मूव करूंगा टेंजेंट वेक्टर को इसके अराउंड, तो वो सारा मतलब एक ही डायरेक्शन में रहेगा। लेकिन अगर मैं एक स्फीयर लेता हूँ, उसमें टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, तो वो हमेशा अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ द स्फीयर। मतलब अगर मेरा पूरा स्फीयर इस तरह है और मैंने अपने टेंजेंट वेक्टर को इस तरह रोटेट करवाना है, मतलब 360 एंगल में रोटेट करवाना है, मतलब फाई एंगल में रोटेट करवाना है, तो मेरा जो टेंजेंट वेक्टर होगा वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा होगा। अगर तो मैं टेंजेंट वेक्टर चेंज कर रहा हूँ, मतलब वो आउटवर्ड हो, हमेशा आउटवर्ड हो, तो उसको हम पॉजिटिव कर्वेचर कहते हैं। और अगर ऐसी सरफेस है जिसमें कर्वेचर जो टेंजेंट वेक्टर है वो अपनी डायरेक्शन इनिशियल से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाए, मतलब अगर आपका पहले इनिशियल वेक्टर जहाँ आउटवर्ड था और फिर आपका इनवर्ड आ गया, या पहले आपका राइट था और फिर आपका लेफ्ट में आ गया, तो मतलब टेंजेंट वेक्टर टोटली अपनी 180 की शिफ्ट हो गया, तो इस तरह के सरफेसेस को हम नेगेटिव कर्वेचर सरफेसेस कहते हैं। मतलब उसका जो सरफेस होगी उसका कर्वेचर नेगेटिव होगा। तो ये इसका एक मतलब नाइवली आइडिया है। वैसे अगर आप मैथमेटिकल पूछे कर्वेचर क्या होता है, तो वो एक स्केलिंग फैक्टर होता है, आर को के डिफाइन कर रहे होते हैं, वो के की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो पॉजिटिव होगी तो वो पॉजिटिव कर्वेचर है, अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव कर्वेचर है, समथिंग लाइक दैट। अगर फिजिकली डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको आप टेंजेंट वेक्टर से परसीव कर सकते हैं। अच्छा अब अच्छा, जिस तरह हाँ अभी जी, आपने बात की कि क्वांटम थ्योरी है, तो बेसिकली अप्रोच है क्वांटाइज करने की, कम्यूटेशन रिलेशंस को होल्ड कर रही होगी। तो स्ट्रिंग में हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशंस क्या उसी सेंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जैसे फील्ड थ्योरी में करते हैं? से आपके पास कोई एक स्केलर फील्ड है और देन कोई कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट मोमेंटम वगैरह है, सो क्या इसके रिलेशंस भी फील्ड्स के ऊपर उसी तरीके से इंप्लीमेंट होंगे? अपना क्वेश्चन रिपीट करना था, मैंने तो जिस स्टैटिक तरह में जिस तरह आपने बात की कि कोई भी क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी कुछ कम्यूटेशन रिलेशंस को कॉरेस्पॉन्ड करती है, हाँ तो जी, क्या स्ट्रिंग में भी हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन उसी तरीके से होल्ड कर रहे होंगे जिस तरह फील्ड थ्योरी में करते हैं? सो लेट्स सपोज कि हाँ कोई जी, स्ट्रिंग है, एग्जैक्टली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई स्केलर फील्ड है, उसका कोई कॉन्जुगेट मोमेंटम वगैरह है, और आप एग्जैक्टली उनके कॉरेस्पॉन्ड। एग्जैक्टली हाँ जी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे ना। ये देखो, जब मैं स्ट्रिंग्स को क्वांटाइज करने बैठता हूँ ना, मैंने स्ट्रिंग्स को क्वांटाइज करने बैठा, ये अगर आप देख सकते हो उसको, तो यहाँ पर देखो, तो ये जो स्ट्रिंग्स के हैं मतलब रिलेशन, ये मतलब कॉम्बिनेशन रिलेशन को होल्ड कर रही होती हैं। मतलब ये एक्स जो कि कोऑर्डिनेट्स हैं स्ट्रिंग्स के, जो कि दो तरह कोऑर्डिनेट्स हैं, टाउ एंड सिग्मा, और उसके ये हैं, ये जो कैनोनिकल मोमेंटम्स हैं, और फिर ये उनका रिलेशन ये सब फॉलो कर रहे होते हैं। और ये मोमेंटम ऑपरेटर है, ये जो एनहाइलेशन ऑपरेटर है, जिसको हम मोड्स कह रहे होते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर, तो स्ट्रिंग्स के अंदर भी एक कॉम्बिनेशन रिलेशन होल्ड कर रहे होते हैं। तो ये वो चीज़ है, हम जिस तरह क्वांटम फील्ड थ्योरी में यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ है। सो ये जो भी रिलेशंस लिए हुए ये हमने इक्वल टाइम पे लिए हुए हैं, क्या ये डिफरेंट टाइम्स के लिए होल्ड कर सकते हैं? क्योंकि उस सूरत में आपके पास, क्योंकि ये हम क्या लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन को कॉरेस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, इस वजह से हमने इक्वल टाइम पर रिलेशंस लिए हैं, या हम टाउ 1 टाउ 2 भी ले सकते थे यहाँ पर? आप टाउ मतलब वन टाउ टू भी हैमिल्टोनियन ले, अप्रोच हो हाँ सकती है? हो सकती है, आप टाउ वन टाउ टू भी ले सकते हैं, मगर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने यहाँ पर सिर्फ मतलब इक्वल टाइम रिलेशन लिए हैं, ताकि हम उसके आगे देख लें कि मोड्स कैसे आते हैं। अगर हमने मोड्स निकाल लिए, फिर हम बता पाएंगे कि देखेंगे ये इसकी डायमेंशन निकल के आ रही है। अगर आप इक्वल टाइम रिलेशन नहीं लेते, तो उससे बस आपका मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मगर फिजिक्स पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। सही। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे वो अब शायद क्लियर होगा कि क्या पूछना चाह रहे थे। वो ये था कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे पास एक डायमेंशन जो है वो स्पेशल हो और 2 डायमेंशन टाइम की हो? नहीं, हमारे पास ऐसा नहीं है। बिकॉज जो स्ट्रिंग थ्योरी बताती है वो यही बता रही है कि आपके पास 25 डायमेंशन स्पेस की है और 1 डायमेंशन टाइम की है, अगर वो बोसोनिक स्ट्रिंग थ्योरी है और सुपरसिमेट्री नहीं है। पर अगर आपके पास सुपरसिमेट्री होल्ड करती है, तो आपके पास 9 डायमेंशन स्पेशल होंगी और 1 डायमेंशन टाइम की होगी। I think F3 two m dimension F3 नहीं, I guess ये 2 dimension F3 तो नहीं होगी। जो कमरन वफा की F3 है वो स्ट्रिंग बैकवा के ऊपर I guess काम कर रही है। स्ट्रिंग बैकवा और उसकी जो कंपैक्टिफिकेशन ऑन क्लैवियर मैनिफोल्ड होती है वो उस पर काम कर रही है।
लेकिन अगर ऐसा होगा तो मैंने इसको अभी तक देखा नहीं है, तो मैं तो देख लूँगा अगर, लेकिन राइट तो जो मेरा अभी तक नॉलेज है उसमें तो आई गेस जो स्ट्रिंग थ्योरी है उसमें मतलब ये चीज़ें हैं। हाँ, जो एफ थ्योरी है जो मैं बात कर रहा हूँ, एफ थ्योरी इज अ काइंड ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी, ब्रांच ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी। मगर जो हमने 5 वर्जन बात किया जिनमें मतलब टाइप ए और टाइप 2B, टाइप 2A और रिटोरिक के 2 वर्जन आते हैं, उन 5 वर्जन एम थ्योरी के वर्जन के अंदर जो ये है जो मैं बात बता रहा हूँ कि 9 डायमेंशन की है और 1 डायमेंशन टाइम की है। और लेकिन अगर आप एफ थ्योरी की बात करें तो एफ थ्योरी इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रिंग थ्योरी जो कि अभी तक इनमें नहीं आती, तो उसके बारे में मुझे टाइम के डिफरेंस का नहीं पता, अगर आपको है तो देख लूँगा मैं उसको, मेरे लिए ये चीज़ नहीं होगी। अच्छा जुनेद भाई, एक क्वेश्चन था मिस्टर हाशिम फारूक का, शायद मैंने मिस ना कर दिया हो कि ओपन स्ट्रिंग्स ही फोटोन को कॉरेस्पॉन्ड क्यों करती हैं और क्लोज ग्रेविटॉन को, क्योंकि प्रॉपर्टीज तो दोनों की ही तकरीबन हम हाइपोथेटिकली सेम लेते हैं। नहीं, सेम नहीं होती। किसमें आप सेम होती है? आपका फोटोन का जो क्वांटम नंबर है वो कितना है, स्पिन क्वांटम नंबर कितना है उसका, नहीं, ग्रेविटोन का स्पिन के अलावा। नहीं स्पिन आपके ना जो क्वांटम लेवल पे आप 3 डिफाइन करते हो, आप एक ऑब्जेक्ट का मैथ डिफाइन करते हो, चार्ज डिफाइन करते हो, स्पिन डिफाइन करते हो। तो जो आपके पास मैथ है फोटोन, वो आपके पास वो है मैथलेस है, ग्रेविटोन मैसिव है। अच्छा जी, उसके बाद स्पिन की बात करते हैं, फोटोन की स्पिन 1 होती है, ग्रेविटोन की जो स्पिन है वो 2 होती है, ठीक है। इसलिए आप चार्ज पे बात कर लो तो चार्ज का भी इस तरह का रिलेशन है, मुझे भी याद नहीं है। मतलब ये कि जो ग्रेविटोन है उसकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं जो कि टोटली डिफरेंट है फोटोन की प्रॉपर्टीज से। तो अब आप ये पूछोगे तो मुझसे कि मतलब स्ट्रिंग मतलब फोटोन है जो बाकी पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ ओपन स्ट्रिंग से ही क्यों प्रोड्यूस होते हैं, तो ये तो मतलब बिल्कुल वही क्वेश्चन है कि जिस टाइम आपने ये पूछूं कि मतलब अगर एफ इज इक्वल टू एम ए है तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ या फिर इसकी डेफिनेशन कहाँ से आई है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है। तो यही वजह है कि आप अपने थ्योरी के ऊपर कुछ कुछ एक्सियम अप्लाई कर रहे होते हो। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि मतलब इलेक्ट्रॉन की यही वैल्यू की हमने सेट की है, तो उसकी वजह ये है कि जब हमने एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट चार्जेस को मेजर करना शुरू किया तो हमने देखा कि वो उसके हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल मिल रहा होता है। तो हमने ये देखा कि यही वो वैल्यू है जिसका इंटेग्रल मल्टीपल किया जाए तो हमें डिफरेंट मतलब चार्जेस मिल रहे होते हैं। लिहाजा यही वो फंडामेंटल वैल्यू है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी ऐसा चार्ज मेजर नहीं किया जो कि उस वैल्यू से कम का हो, तो हमने उसको सेट कर दिया। इसी तरह हमने ये भी अपना एक्सियम अप्लाई किया कि जितने भी ओपन स्ट्रिंग्स हैं वो सारे के सारे हमें वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं डिफरेंट मैटर पार्टिकल्स, और जो हमारे पास क्लोज स्ट्रिंग्स हैं वो हमारे पास ग्रेविटॉन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। आई गेस अगर मुझे आप थोड़ा टाइम हो दें तो मैं ये देख सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ कि जो ओपन स्ट्रिंग्स हैं कि उसको हम किस तरह देखते हैं। ये हमने डिफाइन किया, ये कर दिया, ये हमने क्लोज स्ट्रिंग्स कर रहे हैं, क्लोज स्ट्रिंग्स करते करते ये आ गया, ये मैसेज कर दिए, फिर ये कर दिया, मैसेज जाते हैं। हाँ, इधर शायद मैंने भी इंक्लूड नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये हमने एक्सियम अप्लाई किया, अगर जो क्लोज स्ट्रिंग्स हैं वो ग्रेविटी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सही। अच्छा, मैं और क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाशिम फारूक है, एज पर आइंस्टाइन इंटरप्रिटेशन ऑफ जीआर ग्रेविटी इफेक्ट लाइट स्ट्रिंग थ्योरी हाउ क्लोज एंड ओपन स्ट्रिंग क्लोज ओपन। अच्छा, तो ये बात ये कि क्लोज और ओपन से आपस में इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं करते? नहीं, क्लोज स्ट्रिंग्स ओपन स्ट्रिंग के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। ओपन स्ट्रिंग सिर्फ ओपन स्ट्रिंग के साथ मतलब आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 2 ओपन स्ट्रिंग है तो मैं एक क्लोज स्ट्रिंग बना सकता हूँ, लेकिन क्लोज स्ट्रिंग्स ओपन स्ट्रिंग तक मतलब किसी तरीके से भी इंटरेक्ट कर ही नहीं रहे होते। उसकी वजह होती है बिकॉज आपके पास होता है ना क्लोज स्ट्रिंग, वो डीप ब्रेन के साथ अटैच नहीं हो पाता। जब वो डीप ब्रेन के साथ अटैच नहीं हो पाएगा तो डीप ब्रेन के ऊपर हम फील्ड डिफाइन करते हैं। तो जो वहाँ पर फील्ड डिफाइन है और जो क्लोज स्ट्रिंग है वो डीप में अटैच नहीं होगा, तो वो जो फील्ड होंगी उसको इफेक्ट ही नहीं कर रही होंगी। तो लिहाजा स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर क्लोज स्ट्रिंग और ओपन स्ट्रिंग आपस में इंटरेक्शन नहीं कर सकते। हाँ, ओपन स्ट्रिंग्स बिकॉज दोनों ओपन जितने भी ओपन स्ट्रिंग्स हैं वो अपने अपने कोरस्पॉन्डिंग ब्रेन के साथ अटैच होते हैं और उनमें फील्ड डिफाइन होती हैं, लिहाजा उनमें आपस में इंटरेक्शन पॉसिबल है।
मेरा ख्याल जुनैद इसमें जो क्वेश्चन है ना उनका डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हवाले से, जो कि जीआर की प्रेडिक्शन भी थी ना, तो अब इसमें ये है कि ओपन स्ट्रिंग सिर्फ फोटोन नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन स्ट्रिंग सिर्फ फोटोन नहीं बल्कि स्टैंडर्ड मॉडल के सारे फील्ड जो हैं, सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, वो एलिमेंट्री पार्टिकल सारे के सारे जो है वो ओपन स्ट्रिंग में आ जाते हैं। सो द प्रॉपर क्वेश्चन वुड बी कि वो इफेक्ट्स जिसमें स्पेस टाइम जो है वो इफेक्ट करती है हमारे इन स्टैंडर्ड मॉडल फील्ड्स को, तो उसका मैकेनिज्म स्ट्रिंग थ्योरी में क्या होगा? स्ट्रिंग जिस तरह मतलब जीआर के अंदर जो फोटोन है वो डिफ्लेक्ट होती है अकॉर्डिंग टू द कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, इसी तरह स्ट्रिंग थ्योरी के जो ग्रेविटॉन्स हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि वो मतलब मैसिव पार्टिकल्स होते हैं, वो मतलब डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, वो मतलब कर्व कर रहे होते हैं स्पेस टाइम को। जिस तरह आप यहाँ पर देख लें कि हमें जो कि ये स्लाइड ओपन ही हुई है, ये ब्लैक होल वाली जो पिक्चर बनाई हुई है यहाँ पर, ये पूरा आपके पास एंटी डी थीटा स्पेस है, और एंटी डी थीटा स्पेस जो एडीएस स्पेस है वो ग्रेविटी से रिलेट कर होता है, और ये आपके पास ओपन स्ट्रिंग्स हैं, और ये ओपन स्ट्रिंग्स हैं, ये ग्रेविटॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उन ग्रेविटॉन की वजह से ये पूरा कर्वेचर है जो स्पेस टाइम ये कर्व हुआ है। तो जिस तरह जीआर के अंदर जो फोटॉन्स हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, उसी तरह स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर जो क्लोज स्ट्रिंग्स हैं जो ग्रेविटॉन को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं वो स्पेस टाइम डिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जी, और अच्छा, इसके बाद एक सवाल था मेरा कि होलोग्राफी को डिस्क्राइब करते वक्त वो जो हम स्ट्रिंग्स को के जरिए इंटरेक्शंस को बता रहे थे ना कि स्ट्रिंग्स जो हैं वो डी ब्रेन के साथ ओपन स्ट्रिंग्स जो हैं वो अटैच होती हैं, तो होलोग्राफी में हम किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि फील्ड और जो हमारे स्पेस टाइम है वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं? मतलब वो होलोग्राफी में स्ट्रिंग्स कहाँ पे हैं, वो इसमें तस्वीर में तो नजर नहीं आ रही। एक्चुअली में हमने जो मैं डी ब्रेन इंट्रोड्यूस करवाया था ना, डी ब्रेन एक्चुअली में क्या है, डी ब्रेन एक्चुअली एक बाउंड्री है, एक सरफेस एक बाउंड्री है, और उस बाउंड्री के ऊपर चीजें अटैच हुई हैं, ठीक है, जिसको ओपन स्ट्रिंग्स कहते हैं, और उनके ऊपर फील्ड्स हैं, राइट। अब इस डायग्राम में हम देखते हैं, अब जो मेरा अंदर वाला पूरा पार्ट है, जो ये वाला पूरा पार्ट है, इसमें ओपन क्लोज स्ट्रिंग्स हैं, जो क्लोज स्ट्रिंग्स हैं वो ग्रेविटी को जनरेट कर रहे हैं, और ग्रेविटी से ही हमें एडीएस स्पेस मिल रही है। अब इस एडीएस स्पेस की कोई बाउंड्री होगी जो कि हमें डिफाइन की हुई है कि ये एडीएस स्पेस की पूरी बाउंड्री है। अब इस बाउंड्री है तो इसका ये बिल्कुल उसी तरह एक्ट करेगी किसके लिए, ओपन स्ट्रिंग्स के लिए, क्योंकि ओपन स्ट्रिंग इस बाउंड्री के ऊपर आके अटैच हो सकेंगे, बिकॉज इसकी एक डेफिनेट बाउंड्री है, वो बाउंड्री ऐसा वही रोल प्ले करेगी जिस तरह डी ब्रेन ओपन स्ट्रिंग के लिए रोल प्ले करते हैं, उसी तरह जो एडीएस स्पेस की बाउंड्री है वो ओपन स्ट्रिंग के लिए वही रोल प्ले करेगी। अब जो ओपन स्ट्रिंग्स आएंगे, अब इसको मैं मतलब पॉपुलर लैंग्वेज में बात करूँ, ओपन स्ट्रिंग्स कोरस्पॉन्ड पार्टिकल्स। अब वो जो पार्टिकल्स होंगे वो आके इस बाउंड्री पे डिफाइन हो रहे होंगे, तो अगर मैंने उन पार्टिकल्स की फिजिक्स जो है उनकी बाउंड्री पे डिफाइन कर दी है, और वो जो बाउंड्री है वो पार्टिकल्स है, पार्टिकल ओपन स्ट्रिंग्स है, ओपन स्ट्रिंग की अपनी फील्ड्स हैं, तो मैं जो फील्ड वो डिस्क्राइब हो रही हैं सीएफटी के कोरस्पॉन्डिंग, और सीएफटी की स्पेशल टाइप है यांग-मिल्स थ्योरी। तो एक्चुअली में जो इसकी बाउंड्री है ना, जहाँ पे ओपन स्ट्रिंग्स अटैच है, उसके इनर क्लोज स्ट्रिंग्स प्रोपेगेट कर रहे हैं। डायग्राम में मतलब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे मुझे बाउंड्री के ऊपर भी ओपन स्ट्रिंग्स बनाने चाहिए, ताकि उसका आइडिया होता कि मैंने जो डी ब्रेन इंट्रोड्यूस करवाया है उसका यहाँ पर फायदा क्या हुआ है। तो ये एक चीज हो गई आपको। जी, इसके अलावा एक वो पॉपुलर साइंस वीडियोस के अंदर हम देखते हैं कि जी एक प्लेन दिखाया जाता है कि ये हमारी यूनिवर्स है 4 डायमेंशनल, और इसकी जो 6 डिमेंशंस हैं जो कि रैप्ड हैं वो जो है वो उसके बाहर हैं, मतलब 2 ब्रेन्स के दरमियान हैं, तो हम कहते हैं कि वो हाइपर स्पेस के अंदर हैं। तो इससे मुताल्लिक कुछ बताएं। तो वो अब मुझे शायद मिलेंगे नहीं, तो मतलब वो उसके वो देखना पड़ेगा कि वो मतलब क्या चीज़ है। मैं मतलब ये कि ओपन स्ट्रिंग्स जहाँ पे जाके अटैच हो रही हैं ब्रेन के ऊपर, हाँ वो ब्रेन 4 डायमेंशनल यूनिवर्स है हमारी, ठीक है। ठीक है।
लेकिन चूंकि ओपन स्ट्रिंग जब अटैच होती है तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो उसका कर्व नजर आ रहा है हमें, हाँ वो उस ब्रेन के ऊपर नहीं है, वो कर्व एक्स्ट्रा डिमेंशंस के अंदर है। ठीक है। तो वो उन एक्स्ट्रा डिमेंशंस को फिर हाइपर स्पेस कर दिया। हाइपर, हाँ, उसकी वजह ये होती है कि मैंने भी डीप ब्रेन्स डिफाइन किए थे। अब यहाँ पर देखा है डीपी ब्रेन्स भी लिखे हुए हैं। अब डीपी ब्रेन्स वो है, अगर सपोज करके मेरा जो ऑब्जेक्ट है डी ब्रेन का वो 2 डायमेंशनल है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी है कि मेरा जो मतलब वो हो कि डी ब्रेन्स होंगे वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स होंगे, 4 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, 5 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, इवन 6 डायमेंशनल भी हो सकते हैं। तो जो मेरे डी ब्रेन हैं वो जितने जितने डायमेंशन के होंगे, तो लेकिन हम तो सिर्फ 3 डायमेंशन पर सीख कर पाएंगे, बाकी जितने भी उसके पॉइंट्स हैं, जो उसके ओपन स्ट्रिंग के पॉइंट्स हैं, वो हाइपर सरफेस के साथ कनेक्ट कर किए होंगे, मगर वो एक्चुअली हमें उसको हम परसीव नहीं कर पा रहे होंगे। यही वजह है कुछ ऐसे पार्टिकल शायद हो सकते हैं जो हाइपर सरफेस के अंदर हों, लेकिन उनको हम अभी तक परसीव नहीं कर पाते। एक्चुअली में स्टैंडर्ड मॉडल जब ये सन बना था, तो हमने डिफरेंट तरह के हर रोज हम नए नए पार्टिकल डिस्कवर कर रहे थे। तो वो यही था कि हम फील्ड में एनर्जी दे रहे थे, तो हमें डिफरेंट तरह के वो पार्टिकल्स मिल रहे थे जो हमें पहले कभी देखे भी नहीं थे। तो ये भी वही चीज, इसका मतलब है कि हमने वो जो फील्ड थी वो हायर डायमेंशन में थी, हमने उन हायर डायमेंशन की जो एनर्जी थी उनको वो दी, वो एनर्जी हायर डायमेंशन में गई, बिकॉज जो एनर्जी है वो प्रोपेगेट कर सकती है थ्रू ग्रेविटी। तो वो जब हायर डायमेंशन में गई, वहाँ पे उन्होंने एनर्जी दी और वहाँ से पार्टिकल पॉप आउट हुए, और वो हम उसको, वो मैसिव होते हैं पार्टिकल, उनको हमने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया। तो ये भी वो चीज़ है कि जो हमारे जो ओपन स्ट्रिंग्स हैं, अगर वो जो डी ब्रेन है, अगर वो हायर डायमेंशन का डी ब्रेन है, तो उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे वो हायर डायमेंशन में कनेक्ट किए होंगे, और उसके कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे जो हम शायद उसको परसीव नहीं कर पाते हैं। तो ये हो सकता है ऐसे। अच्छा, क्यूएफटी के अंदर हम देखते हैं कि हम लैग्रांजियन लिखते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स की इंटरेक्शन टर्म्स हम लिखते हैं और उनके ऊपर वो कंडीशंस लगाते हैं सिमेट्री वगैरह की, उससे हमें डिफरेंट पॉसिबल इंटरेक्शंस मिलती हैं। वहां से हम फिर प्रेडिक्ट करते हैं कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसी कोई स्कीम स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर भी है कि हम कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स जो कि स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं है, उनकी कोई प्रेडिक्शन कर सकें थ्रू सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन टर्म्स? हाँ, अभी तक जितने भी किए ना हमने, वो सारे के सारे 12 एलिमेंट्री पार्टिकल्स ही हैं। मतलब अभी हम जो हमने उसकी प्रेडिक्शन की है, जो मैंने मतलब यहाँ पे दिखा रहा था आपको, ये ओपन स्ट्रिंग्स हैं। जिस तरह आपने बात की ना, हम क्वांटम फील्ड थ्योरी में पहले उससे स्टार्ट होते हैं, लैग्रांजियन से स्टार्ट, हमने जहाँ से भी हमने लैग्रांजियन से स्टार्ट की है। ये स्ट्रिंग का लैग्रांजियन है, मतलब लैग्रांजियन इंटीग्रल के मैंने लैग्रांजियन को डिफाइन किया हुआ, अगर उसको पूरी स्पेस में इंटीग्रेट कर दूँ तो एक्शन बन जाता है। मैंने एक्शन डिफाइन किया, फिर हैमिल्टन प्रिंसिपल अप्लाई करके मैंने उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी, ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, फिर मैंने उनकी बाउंड्री कंडीशन को दोबारा अप्लाई किया, और फिर मैंने उसका जो मतलब हमने देखा जो सोल्यूशन है वो इस तरह के फॉर्म को फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। और फिर हमने क्लोज स्ट्रिंग के लिए देखा कि उसके मोड्स क्या डिफाइन होते हैं, और फिर हमने ओपन स्ट्रिंग के लिए मोड्स डिफाइन किए। तो इस तरह करते करते हम चलते गए, फिर हमने ये देखा कि उनका जो मैथ होता है उसका डिफाइन हो रहा होता है। और फिर यहाँ से हमने देखा कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं, हर मोड के कोरस्पॉन्डिंग हमें मैथ मिल रहा है। जो मैंने पहले शुरू में बात की थी इस स्लाइड के अंदर, कि हमारे पास जो डिफरेंट मोड्स होते हैं वो डिफरेंट पार्टिकल्स दे रहे होते हैं हमें, ये वाले। तो उसको हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारे पास जो ये वाले मोड्स हैं, ये फ्रीक्वेंसीज बता रही होती हैं उनके, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास डिफरेंट मैसेज आते हैं, और ये मैसेज होते हैं इनको हमने मॉडल किया कि अगर ये वाला मैथ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन का मैथ है, अगर ये वाला मैथ आएगा तो ये प्रोटॉन का मैथ है, अगर ये वाला मैथ आएगा तो ये इसका मैथ है। तो अगर हम क्लोज स्ट्रिंग की बात करते हैं, जो इससे मैथ आता है, ये ग्रेविटॉन का मैथ होता है हमारे पास। तो इस वजह से हमने ये बताता है कि अगर हमने सपोज करें कि हमने इतनी एनर्जी निकाल दी, जो कि मैं सन में दे दी, हमें पार्टिकल निकल आया, हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रेविटॉन ही है? तो वो हमें ये बताती है स्ट्रिंग थ्योरी को, उसका मैथ कितना होना चाहिए तो वो ग्रेविटॉन होगा। तो ये मतलब जैसे आप बात करें क्यूएफटी के अंदर हमने वो पूरा फॉलो करते हैं, तो स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर भी हम बिल्कुल वो चीज़ें फॉलो करते हैं, हम एक्शन शुरू करते हैं और हम फिर उसकी डायनामिक्स डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर जितने भी हमने मैसेज निकाले हैं, जो आप बात कर रहे हैं कि क्या कोई ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो स्टैंडर्ड मॉडल से हम मतलब ज़्यादा के हों, तो लेकिन अभी तक हमें जितने भी मैसेज निकाले हैं वो सारे के सारे वही हैं जो हमारे पास स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर हैं, और जो बाकी हैं वो उनके मल्टीप्लिकेशन के ही हैं, मतलब उनके इंटीग्रल मल्टीपल्स ही हैं। असल मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो प्रेडिक्टिव पावर के हवाले से है। जिस वक्त क्वांटम फील्ड थ्योरी हम बना रहे थे तो उसमें
एक बहुत बड़ी जो हमें सक्सेस थी वो ये थी कि हम न्यू इंटरेक्शन टर्म्स इंट्रोड्यूस करके नए पार्टिकल्स की डिस्कवरी को पॉसिबल बना रहे थे। तो ये QFT की जो स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टिव पावर है ये उसको सक्सेसफुल बना रही थी। तो ऐसा ही मैं कोई फिनोमिना बात कर रहा हूँ कि स्ट्रिंग थ्योरी में मिसाल के तौर पे वो कन्फर्मल थ्योरी की हम बात कर रहे हैं, तो मुझे बार बार ज़हन में आ रहा है कि हम सिर्फ कंफर्म कर रहे हैं मतलब हम ये अपनी वो जो स्टैंडर्ड मॉडल ग्रेविटी या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की जो अर्ज है उसको तो हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं थ्रू स्ट्रिंग थ्योरी, लेकिन एक साइंटिफिक अच्छी साइंटिफिक थ्योरी के अंदर ये प्रिडिक्टिव पावर होनी चाहिए कि वो आपको कुछ न्यू फिनोमिना दे, कुछ न्यू मटेरियल, कुछ न्यू पार्टिकल फील्ड्स, कुछ ऐसा नया दे कि जो उसको मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग और सक्सेसफुल बना सकें। ऐसा कुछ पॉसिबल है क्योंकि मैकेनिज्म तो वही QFT वाला है, तो उसमें हम डिफरेंट फील्ड्स के करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पर अगर CFT अगर आप ले रहे हैं कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, तो उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन को ज़हन में रखते हुए हम कोई टर्म्स बनाएं, उनको लैग्रांजियन में ऐड करें और इसी तरह से मैसेज निकालें और हमारे पास प्रेडिक्शन आए, रेंज आए कि जी इस एनर्जी रेंज के अंदर इस तरह का भी पार्टिकल डिस्कवर हो सकता है, जिस तरह सुपरसिमेट्री कहती थी। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रिंग थ्योरी में कैसे पॉसिबल है? देखिए जो आप बात कर रहे हैं इस तरह, तो आप इस रिलेशन के थ्रू आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिफाइन कर दो कि ये ये वाले मैथ के पार्टिकल भी होने चाहिए, ये वाले भी होने चाहिए, मगर मसला यहाँ पर ये आता है कि क्या वो पार्टिकल ऑब्जर्वेबल भी हैं कि नहीं, या वो फिजिकल पार्टिकल्स भी हैं भी कि नहीं, कि वर्चुअल पार्टिकल्स हैं। तो देखा कि अभी तक जो स्टैंडर्ड मॉडल है वो हमारे पास 80% तो कंप्लीट है। उसने आपको बता दिया कि इतने 12 पार्टिकल्स हैं आपके पास जो कि पूरी की पूरी जो आपकी कायनात है उसे वो कंस्टिट्यूट कर रही होती है। अब सिर्फ एक नहीं है, उसके लिए ये चीज़ बता रही है। अब स्ट्रिंग थ्योरी की जो सक्सेस है वो यही है मेरे नज़दीक कि ये स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फेजेस जो है जो अभी तक हमारे पास है उसको तो प्रोड्यूस कर ही रही है, उसके साथ साथ ये ग्रेविटॉन को भी प्रोड्यूस कर रही है। तो अगर आप ये कहें कि आप इनके अलावा नए पार्टिकल्स निकालने बैठ जाएंगे, लेकिन वो तो हम ऑब्जर्व भी नहीं कर पाएंगे, ना हमने अभी तक ऑब्जर्व किए हैं। हाँ, इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। अच्छा, मिसाल के तौर पर स्पेक्ट्रल फील्ड थ्योरी के अंदर हम जानते हैं कि जो हैवी क्वार्क्स हैं उनके कुछ ऐसे डिकेज हैं जो कि सीक्वेयर मैट्रिक्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं होते, तो उसके लिए हम W प्राइम या Z प्राइम इस तरह के नए पार्टिकल्स प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसमें फिर हम वही क्वांटम फील्ड थ्योरी वाला मैकेनिज्म अप्लाई कर रहे होते हैं और उसी से हम बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल जो फिजिक्स है सुपरसिमेट्री के हवाले से या डार्क मैटर डार्क एनर्जी के हवाले से इन्फ्लेशन के हवाले से, तो मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल W प्राइम Z प्राइम की प्रेडिक्शन देती है QFT, क्या उन बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनमें स्ट्रिंग थ्योरी इस तरह हेल्पफुल हो सकती है कि वो प्रेडिक्शन कर सके? इसका डेफिनेट आंसर तो मुझे नहीं पता होगा, लेकिन आई गेस करती तो होगी, लेकिन आई गेस इसका डेफिनेट आंसर नहीं पता, ये देखना पड़ेगा। थैंक यू। अच्छा, किसी और का अगर कोई सवाल है तो बस अब हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। लास्ट 2 क्वेश्चंस अगर कोई करना चाहता है चैट में या ऑडियो में तो वो कर लें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो हम विद इन अ मिनट इसको क्लोज करेंगे। आई गेस किसी का क्वेश्चन नहीं है। हाँ, मेरा ख्याल है कि सवाल नहीं है। बहरहाल जुनैद, बहुत शुक्रिया। आप यकीन करें बहुत अरसे से स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में मुख्तलिफ वीडियो देख रहे थे, लेकिन आपने बहुत सिंपल करके बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेनेटरी पावर के साथ अपने एक्सप्लेन किया है और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है, बहुत सी नई चीज़ें सीखने को मिली हैं और अब इन इक्वेशंस को देख देख कर दिल कर रहा है कि इस तरफ भी हम रिसर्च की तरफ आए। बहरहाल स्ट्रिंग थ्योरी काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है और अभी भी है, क्योंकि इसकी जो एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस है लोगों की, बट स्टिल मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसकी एक वैल्यू है ही। बट की क्वेश्चंस जो हैं हमारे जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, चूंकि हमारे पास कोई और वेरिएबल नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है स्ट्रिंग थ्योरी के अलावा, तो इस हवाले से जब तक वो कहते हैं ना कि फाल्सिफाई नहीं हो जाती, तो तब तक तो हमारे पास एक खुली ग्राउंड है कि हम स्ट्रिंग थ्योरी की तरफ जा सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने आज का लेक्चर सुना होगा वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे। बहुत आपका शुक्रिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। मुझे खुद बड़ा मजा आया, काफी मतलब इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट था, तो थैंक यू सो मच गाइस। और बाकी आप मतलब
कि कोविड चल रहा है, मतलब क्रूशियल टाइम चल रहा है, तो आई होप अब आप अपना अपने मतलब घर वालों का ख्याल रखें इसमें, सोशल डिस्टेंसिंग जी जी जरूर, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।